Subscribe to the Horeb, do bell icon. நீங்கள் ஓரேபுக்கு வந்திருக்கிறீர்களா? Dear beloved, have you come to Mount Horeb? உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஓரேப் என்கிற அந்த தேவ பர்வதம் என்கிற அந்த தன்மைக்கு நீங்கள் கொண்டு வரப்பட்டு விட்டீர்களா? எல்லா கூட்டங்களும் இனிமேல் வழக்கம் போலவும் பழைய நிலைக்கும் கொண்டு வரப்பட முடியாத கர்த்தர் கிரியை செய்ய முடியாய் ஒரு விசை ஜெபம் பண்ணுவோம். ஹalleluya, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. ரிபாலா பக்கத்ரபானியா ஆண்டவரே, ஹalleluya, hallelujah, ஆமென். பைபிள்ல ஒரு வசனம் உண்டு, உங்களுடைய சபை முன்போல் திடப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த முன்போல சபை தேவனுக்கு முன்பாக திடப்பட முடியாது. ஒரு விசை எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுவோம். எல்லாரும் ஹalleluya, hallelujah, 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 hallelujah. தேவரே ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஒரு சிலர் கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். மாத்திரமல்ல, இன்னும் ஒரு சிலர் கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. ஜெபம் பண்ணலாமா எல்லாரும்? ஒரு விசை கைகளை உயர்த்தி நம்முடைய விசுவாசிகள், தேவனுடைய ஜனங்கள் சென்ட்ரலையோ லோக்கல்லையோ எங்கெல்லாம் கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ கர்த்தர் அவர்களை குணமாக்க வேண்டும். இந்த வல்லமை ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையின் தொடக்கூடாது. கர்த்தர் கட்டளையிட முடியாது. ஜெபம் பண்ணுவோம். இயேசுவின் நாமத்துல ஜெயதாசை குணமாக்க முடியாது ஜெபிக்கிறேன். சகோதரனுடைய அந்த மூச்சு திணறலை நிறுத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். கர்த்தர் அற்புதம் செய்யும் ஆண்டவரே, மகனை குணமாக்கும் ஆண்டவரே. ஓ ரபக்கரபக்கத்திரா, இன்னும் வியாதி பலவீனமா இருக்கிற எல்லாரையும் நினைவு கூறுகிறோம். ஆமென். கொரோனா மட்டுமல்ல, இன்னும் ஒரு சில வியாதியஸ்தர்கள் இருக்கிறார். ரொம்ப முடியாத தன்மையில சிஸ்டர் ஸ்வர்ணாலாம் ரொம்ப கண்டிஷன் மோசமான நிலவரத்தில் இருக்கிறாங்க. ஒரு விசை கரங்களை உயர்த்துங்க. நம்முடைய விசுவாசிகள் எங்கெல்லாம் எந்த வியாதியில இருந்தாலும் நசரேனா இயேசுவின் நாமத்தின் வல்லமை இப்பொழுது அங்கே உயிர்ப்பிக்கும் ஜீவனா இறங்க முடியாது. ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். These days we are studying about the thing which will happen in this world in the last days. इन दिनों में, अंतिम दिनों में होने वाली घटनाओं के बारे में हम सीख रहे थे. या दिवसांमध्ये शेवटल्या दिवशी होणारे सर्व घटनेंविषयी आपण वाचत आहोत. When our Lord Jesus was in this world, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था, आपला यीशु ख्रिस्त जेव्हा या जगात होता, disciples came and asked him, what is the sign of your coming and sign of the end of this world? चेलों ने उससे पूछा कि तेरे आगमन के बारे में और इस जगत के अंत के बारे में क्या निशानी है. शिष्यांनी त्याला विचारलं, तुझ्या आगमनाचे चिन्ह काय आहे, जगाचे शेवटच्या दिवसातले चिन्ह काय आहेत. And our Lord Jesus told many things which will happen before his coming, after his coming, and even at the end of this world. और प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु के आगमन के बाद, आगमन के पहले और इस जगत के अंत के समय होने वाली कई घटनाओं के बारे में उनको बताया. आणि येशू ख्रिस्ताने त्याच्या आगमना अगोदर होणाऱ्या गोष्टी आणि जगाच्या शेवटल्या दिवसात होणाऱ्या गोष्टी सर्व काही त्यांना सांगितले. Even up to the last incident, everything is ready to be fulfilled now. और उस आखिरी घटना तक जो कुछ भी करना है वो अभी से सब तैयार हो चुका है. आणि शेवटल्या दिवसात जे काही होणार आहे त्याची तयारी आतापासून सुरू आहे. If you read everything and understand, we'll wonder, Bible is so true. We can rejoice over that. यदि आप सब कुछ पढ़कर तो आप इतना आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पवित्र शास्त्र कितना सत्य है. आणि हे सर्व वाचत असताना आपल्याला आश्चर्यचकित होईल आणि असं किती पवित्र शास्त्र किती खरं आहे हे आपल्याला कळेल. Today also we will study about such few incidents. आज भी ऐसी कई घटनाओं के बारे में हम देखेंगे. आजही काही घटनेंविषयी आपण वाचणार आहोत. First of all, in second Peter, that chapter we read. सबसे पहले दूसरा पत्र 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं. दुसरं पेत्र 3 अध्याय मध्ये आपण वाचतो. Read verse 10 10वां वचन and 12. और 12वां वचन. 10वां आणि 12वां वचन. Read only in Hindi. परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा. उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे.
So here we read that everything is going to be burnt one day. यहाँ पर हम देखते हैं सब कुछ एक दिन जल जाएगा. तिथे आपण वाचतो की सर्व काही लया जाईल, जळून जाईल. Just with a great noise, the heaven will disappear. और जो आकाश है बड़े हड़हड़ाहट के शब्द के साथ चला जाएगा. आकाश मोठा नाद करीत नाहीसा होईल. And there is another thing by name elements. Elements will melt with fervent heat. और एक बात हम देखते हैं जो तत्व है वो भी बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे. हे जे तत्व आहे ते सर्व विरघळून जातील. The earth and all its work shall be burnt. पृथ्वी और उस पर के सब काम जल जाएंगे. पृथ्वी आणि त्यावरील सर्व गोष्टी जळून जातील. Heavens being on fire shall be dissolved. और आकाश जो है आग के कारण वो पिघल जाएंगे. आणि आकाश जे आहे अग्निद्वारे ते गळून जाईल. And the elements will melt with fervent heat. और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे. सृष्टि तत्वे तप्त होऊन लया जातील. For this to happen also everything is ready now. और ये सब होने के लिए अभी से सब तैयार हो चुका है. या सर्व गोष्टी होण्यासाठी सर्व तयारी झाली आहे. First of all, to understand the greatness of God, we should understand the greatness of the universe. सबसे पहले परमेश्वर की महानता को समझने के लिए हमें इस विश्व की महानता को समझना चाहिए. सर्वात अगोदर परमेश्वराचं जे महानता आहे ते समजण्यासाठी विश्वात असलेलं महत्व हे आपण समजलं पाहिजे. The diameter of our sun is so big, it is 1,500 lakhs kilometer. हमारे सूर्य का जो डायमीटर है वो इतना बड़ा है 1,50,000 जो उसका किलोमीटर के तक है. आणि सूर्याचं जे डायमीटर आहे गोलाकार त्याचं जे आहे 1,05,000 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे. Our earth also is big. हमारी पृथ्वी भी बड़ी है. आपली पृथ्वी ही मोठी आहे. But if we put all the earth into the sun like a bag, we can put 96,000 earth inside the sun. यदि पृथ्वी के समान जितने आकार हैं पृथ्वी के आकार को हम सूर्य के अंदर डालेंगे तो 96,000 पृथ्वी जो है वो सूर्य के अंदर समा सकती है. सूर्य एवढा मोठा आहे की पृथ्वीचे 96,000 प्रकार आपण त्या सूर्यामध्ये घालू शकतो. It's so big. वो इतना बड़ी है. इतकं मोठं ते सूर्य आहे. And there is a galaxy by name Whirlpool Galaxy. और एक जो आकाश गंगा है जो वर्लपूल आकाश गंगा कहलाती है. आणि आकाश गंगा आहे त्याला वर्लपूल आकाश गंगा असं म्हणतात. Galaxy means a group of stars. आकाश गंगा कहने से एक तारों का समूह है. आकाश गंगा म्हटलं तर ते ताऱ्यांचा एक समूह आहे. It is 310 light years away from the earth. और वो पृथ्वी से 310 लाइट ईयर्स दूरी पर दिखाई देता है. 310 अंतरावर ते पृथ्वीवरून आहे. The light travels at a speed of 1,86,000 miles at 1 second. एक सेकंड के अंदर जो प्रकाश की जो गति है वो 1,86,000 की है. प्रकाशाची गती 1,86,000 पर किलोमीटर आहे. If it travels like this for 1 year, यदि इस प्रकार से ये जो प्रकाश 1 वर्ष तक यात्रा करेगा तो 1 वर्षापर्यंत जर हे प्रकाश असंच प्रवास करत it's असेल a तर very big number. This galaxy is so far away from our earth. वो एक इतनी बड़ी संख्या है. इस प्रकार से आकाश गंगा जो है वो पृथ्वी से इतना अधिक दूर होकर दिखाई देती आणि है. ती एवढी मोठी संख्या आहे. आकाशगंगा पृथ्वीवरून इतकी लांब आहे. There are many stars bigger than the sun. और सूर्य से बड़े भी कितने ही तारे हैं. आणि सूर्यापेक्षा मोठे असलेले अनेक तारांगण आहेत. Because they are far away, they are looking very small. और लेकिन वो इतना दूर है इस कारण से वे छोटे होकर नजर आते हैं. खूप अंतरावर असल्यामुळे आपल्याला ते छोटे असे नजर येतात. If you want to reach the nearest star, सबसे पास के तारे के पास यदि आप पहुंचना चाहते हैं आणि तो जवळच्या तारांगणाकडे आपल्याला जायचं असेल तर if you travel at a speed of 3 lakhs kilometer per second, it is not impossible. But if you travel like this 3 lakh kilometer per second, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड की गति से यदि आप यात्रा करेंगे तो लेकिन वो भी असंभव है. 1 सेकंद मध्ये 3 लाख किलोमीटर जर तुम्ही ह्या वेगाने तो जर तुम्ही प्रवास केला तरीही नाहीसा होणार. it will take 4 years to reach the nearest star. तो अभी सबसे पास के तारे के पास पहुंचने के लिए 4 वर्ष लग जाएंगे. तरीही जवळपासच्या तारांगणाकडे जाण्यासाठी तुम्हाला 4 वर्ष लागतील. If you start counting our stars one by one, 1, 2, 3, at this speed if you count, it will take 4 years to finish counting all the stars. यदि आप तारों की गिनती लेना आरंभ करेंगे 1, 2, 3, 4 इस तरह से Sorry. 2,000 years it will take to count all the stars. तो सारे तारों को गिनती करने के लिए 2,000 वर्ष लग जाएंगे. जर तुम्ही 1, 2, 3 असं तारांगणाला तर जर तुम्ही मोजायला लागाल तर 2,000 वर्ष लागतील तुम्हाला सर्व तारे मोजून काढण्यासाठी. In our galaxy, all in one group of stars, there are 400 crore stars. हमारे जो एक ही आकाश गंगा है उसके अंदर 400 करोड़ तारे हैं. एका आकाशगंगेमध्ये 404 करोड तारांगण आहेत. Like that, 26 trillion stars are there, so galaxies are there. उसी प्रकार से 26 ट्रिलियन जो है आकाश गंगा दिखाई देती त्या है. प्रकारे 26 ट्रिलियन आकाशगंगा आहेत. So that means our universe
cannot be measured at all. It's such a vast area. अर्थात हमारा ये जो संपूर्ण भूमंडल है उसको वो इतना विशाल है, उसको हम नाप नहीं सकते हैं. आपली आकाशगंगा किंवा आपलं विश्व एवढं मोठं आहे की कोणालाही त्याने मोजता येणार नाही. But Bible says all these are going to be dissolved one day. लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है ये सब कुछ एक दिन पिघल जाएगा. पण पवित्र शास्त्र म्हणते हे सर्व एक दिवस गळून जातील. Now everything is ready for that. About that we will study now. उसके लिए अभी सब कुछ तैयार किया गया है, जिसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे. आणि ह्यासाठी सर्व काही तयार झालेलं आहे आणि त्याविषयी आता आपण मनन करणार आहोत. Now in the whole world all the countries are making bombs. सारे संसार भर में देखें तो कई देशों में लोग बम का आविष्कार कर रहे हैं. संपूर्ण जगामध्ये आपण पाहतो बॉम्बचे आविष्कार होत आहे. See about many bombs here. यहाँ पर हम कई प्रकार के बम को देखते हैं. इथे आपण अनेक प्रकारचे बॉम्ब पाहतो. When the Japan war was going on, जब जापान का युद्ध हो रहा था, जपानमध्ये जेव्हा लढाई होत होती, the Americans could not control them. अमेरिकी लोग उनको नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे. अमेरिकेतले लोक त्यावर नियंत्रण करू शकले नाही. So they caused a bomb. इसलिए उन्होंने Hiroshima. हिरोशिमा के ऊपर उन्होंने बम डाला. मग हिरोशिमा येथे त्यांनी बॉम्ब घातलं. Even then the Japan did not surrender. उसके बाद भी जापान ने अपने आप को समर्पण नहीं किया. तेव्हाही जपानने स्वतःला समर्पण केलं नाही. They went on dropping bomb in America. वो अमेरिका में लगातार बम डालते रहे. मग अमेरिकेवर ते सतत बॉम्ब टाकत राहिले. Then America got angry फिर अमेरिका क्रोधित हो गया. अमेरिका रागावले and he dropped another bomb in Nagasaki. उन्होंने नागासाकी में और एक बम डाला. मग परत नागासाकी येथे त्यांनी बॉम्ब घातलं. And with this one bomb, one country can be destroyed. एक बम के द्वारा एक देश को नाश किया जा सकता एक है. बॉम्बद्वारे एक देशाचा नाश होऊ शकते. First they dropped a bomb by name Little Boy पहले उन्होंने एक छोटा बम डाला था, अगोदर त्यांनी छोटं बॉम्ब घातलं. because the Japanese did not surrender. क्योंकि जापानी लोगों ने समर्पण नहीं किया था. And- जपानी लोकांनी स्वतःला समर्पण केलं Then they नव्हतं. dropped another bomb by name Fat Man. उसके बाद उन्होंने और एक बम डाला जिसका नाम फैटमैन था. आणि दुसरं एक बॉम्ब घातलं त्याचं नाव फॅट मॅन होतं. So then only Japan surrendered. उसके बाद ही जापान ने समर्पण किया. त्यानंतर जपान स्वतःला समर्पण केले. Like this, all the developed countries, they are having so many bombs with them. इस प्रकार से कई विकसित देशों में कई तरह के बम तैयार हैं. या प्रकारे ज्या देशामध्ये उन्नती होत आहे त्या अनेक प्रकारचे बॉम्ब तेथेही तयार आहेत. Here we see about the cluster bombs. यहाँ पर हम जो है ऐसे बमों के कई तरह के बम जो इकट्ठा करके रखे गए गुच्छे को देखते हैं. आणि इथं आपण बॉम्बचा काही गुच्छा पाहतो. Inside one bomb, 600 bombs will be kept. वो एक ही बम के अंदर 600 बम रखे गए हैं. एका बॉम्बच्या आत 600 बॉम्ब असतात. The airplane will come and drop it. विमान आकर उसको गिराएगा. आणि विमान येऊन त्याला कुठंतरी This पाडणार. is one full bomb which is having from 200 to 600 bombs inside. और ये एक पूरा बम है, इसके अंदर 200 से लेकर 600 तक बम दिखाई देते हैं. एक बॉम्बच्या आत 600 बॉम्ब आहेत. Then it will open like this. फिर ये इस प्रकार से खुल जाता है. असं ते उघडलं जाईल. 600 bombs will come out. 600 बम बाहर निकलते हैं. 600 बॉम्ब बाहेर निघतील. Again they will be divided. One bomb will be divided into 4. उसके बाद एक बम जो है 4 भागों में बट जाएगा. परत एक बॉम्बचा 4 बॉम्ब होतील. If they drop only one bomb, और यदि एक ही बम डालेगा तो भी एकच बॉम्ब घातलं तरीही it can go and attack 2,400 places. वो 2400 स्थानों में जाकर आक्रमण कर सकता ते है. जाऊन 2400 जाग्यांवर आक्रमण करू शकते. 100 countries have written an agreement against it that this should not be used. और 100 देशों के लोगों ने इस प्रकार से एक समझौता किया है कि इस बम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. मग असं 100 राज्याच्या लोकांनी असं करार केलेला आहे की हा बॉम्बचा उपयोग करू नये. But even then America or Russia, they don't care. Even Israel, they are making such bombs more and more. फिर भी अमेरिका और रशिया के लोग फिक्र नहीं करते और रूस देश के लोग भी और भी अधिक ऐसे बमों का निर्माण कर रहे तरी हैं. अमेरिका, फ्रान्स, रशिया या गोष्टींचं ते काळजी करत नाही आणि यहुदी लोक अजून अधिक ते तयार करत आहेत. In the year 2004, 2004 में 2004 वर्षी America made a bomb. अमेरिका ने ऐसा एक बम बनाया. अमेरिकेने एक बॉम्ब तयार केला. It's a very big bomb. You have to keep it up on your truck. A big truck, it has to be kept. ये इतना एक बड़ा बम है, इसे एक बहुत बड़े ट्रक के ऊपर रखा जाता हे है. एवढा मोठा बॉम्ब आहे की त्याला ट्रकवर ठेवावं लागतं. Very powerful bomb. They called it mother of all bombs. और वो इतना अधिक सामर्थ्य बम है, इस कारण से उस बम को कहा गया सारे बमों की माता. आणि ते एवढं शक्तिशाली बॉम्ब आहे की त्याला सर्व बॉम्बची माता असं म्हटलेलं आहे. This is 4 times powerful than the Fat Man. और ये फैटमैन नाम के बम से 4 गुना शक्तिशाली है. फॅटमॅन नामक बॉम्बापेक्षा हे 4 पट अजून अगदी शक्तिशाली आहे. And Russians were watching this. रूस के लोग इसके बारे में ध्यान दे रहे थे. आणि रूसचे लोक हे पाहत होते. So they made another bigger bomb.
उन्होंने उससे भी एक बड़ा बम बनाया त्यांनी त्यापेक्षा अधिक मोठा एक बॉम्ब and बनवला named it father of all bombs. और उसका नाम रखा कि वो सारे बमों का पिता है। आणि त्याचं नाव ठेवलं सारे बॉम्बचे वडील Oh, म्हणून. America, you are making mother of all bombs? Okay, we are nothing less. We will make the father of all bombs. अगर अमेरिका जो है सारे बमों की माता नाम के बम को बनाते कोई बात नहीं, हम सारे बमों के पिता करके बनाएंगे। ते म्हटले अमेरिका जर सर्व बॉम्बची माता बनवत असेल तर आम्ही सर्व बॉम्बचे बाप बनवणार, आम्ही काही कमी नाही. Now recently, Russia has discovered another bomb, very powerful bomb. अभी हाल ही में रूस ने और एक बहुत शक्तिशाली बम का आविष्कार किया है आणि आता जवळपास मध्ये रूसने जे आहे अजून एक मोठं शक्तिशाली बॉम्ब तयार केली आहे. It's a hydrogen bomb. वो हाइड्रोजन बम है। ते हायड्रोजन बॉम्ब आहे. It is 2,500 times powerful than father of all bombs. जो सभी बमों का पिता है उससे भी 2500 गुना ये शक्तिशाली बम है। सर्व बॉम्बचे बाप जे आहे त्याच्यापेक्षा अधिक 2500 वेळेस अधिक शक्तिशाली आहे. The bomb was dropped in Japan. ये बम जो है जब जापान में डाला गया था जेव्हा हे बॉम्ब जपानमध्ये टाकण्यात आलं In the year 1945, 1945 में 1945 मध्ये smoke came up. Within few seconds, smoke came out up to 18 kilometers height. और कुछ ही क्षणों के अंदर जो धुआं है वो 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। काही क्षणामध्ये 18 किलोमीटर उंचीवर ह्याचा धूर निघाला. For many kilometers, people died because of radiation. और कितने ही किलोमीटर तक लोग जो है रेडिएशन के कारण मर गए। आणि कितीतरी किलोमीटर अंतरावर लोक त्याच्या रेडिएशनच्या द्वारे ते मेले. But what about the hydrogen bomb? लेकिन हाइड्रोजन बम के बारे में क्या है? हायड्रोजन बॉम्ब विषयी काय आहे? When the hydrogen bomb bursts, 18 kilometer height of fire will come. और जब हाइड्रोजन बम का विस्फोट होता है तो 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक आग दिखाई देती है। हायड्रोजन बॉम्ब स्फोट होत असताना 18 किलोमीटर उंचीवर त्याची अग्नी दिसेल. All the countries have made lots of such bombs and they are keeping it ready for to be used. ऐसे सभी देशों के लोगों ने ऐसे लाखों बम बनाकर वो इस्तेमाल करने के लिए तैयार करके रखे हैं। अनेक राज्याचे लोक वेगवेगळ्या प्रकारचे बॉम्ब तयार करून ठेवला आहे योग्य वेळेस त्याचा उपयोग करण्यासाठी. Here we read about a word element. यहाँ पर हमें यह तत्व करके ऐसे एक शब्द को पढ़ते हैं। येथे तत्व असं एक शब्द आपण With पाहतो. elements only atom bombs are made. और इन तत्वों के द्वारा ही एटम बम बनाया जाता है। या तत्वांच्या द्वारेच ॲटम बॉम्ब अणुबॉम्ब तयार होते. Mercury is an element, iron is an element, copper is an element. They are all elements. मरकुरी, लोहा, कॉपर ये सारी एक एक धातु होकर दिखाई देते हैं। मर्कुरी, लोखंड आणि हे सर्व जे आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे धातू आहेत. Earlier scientists thought an atom cannot be divided. आरंभ के जो वैज्ञानिक थे वे लोग सोचते थे एक अणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। पूर्वीचे वैज्ञानिक लोकांना वाटत होते की हा अणुचा आपण विभाजित करू But शकणार that नाही. day they discovered that atom can be divided. और उसके Proton, neutron and electron. उसके बाद ही उन्होंने इस बात का पता लगाया कि एक अणु को भी विभाजित करके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन करके भाग किया जा सकता आणि है। त्यानंतर त्यांनी ह्या गोष्टीची शोध लावली की या अणुला आपण अजून विभाजित करून प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉन असं वेगवेगळे भाग करू शकतो. They also discovered that when an atom is split, enormous energy will come out. और इन्होंने इस बात का पता लगाया जब अणु का विस्फोट किया जाता है उसके द्वारा अत्यधिक ऊर्जा बाहर निकलती है। आणि त्यांनी ह्या गोष्टीची शोध लावली आहे. अणुचा स्फोट होत असताना अत्याधिक जे शक्ती आहे ते बाहेर पडते. All the atoms or all these atom bombs, all the elements, they are already kept, made and kept ready. ये सारे अणुबम, ये सारे तत्व जो है पहले से बनाकर तैयार करके रखे गए या हैं। सर्व अणुबॉम्ब आणि सर्व तत्वे पूर्वीपासूनच तयार करून ठेवण्यात आलेला आहे. After the tribulation and great tribulation period, क्लेश का समय और महाक्लेश के समय के पश्चात आणि संकट काळ, महासंकटाचा काळ संपल्यानंतर God will be ruling this world for 1,000 years. परमेश्वर जो है 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य करेगा परमेश्वर ह्या पृथ्वीवर 1000 वर्षासाठी राज्य It करणार will be a peaceful ruling. और वो एक शांतिमय राज्य होगा। आणि ते एक शांतिदायक राज्य असेल. Human beings, animals, all will be living in peace. सारे पशु, सारे जीव जंतु, मनुष्य सब शांति से रहेंगे। सर्व पशु, सर्व प्राणी, सर्व लोक ही शांतीने राहतील. Our children will be playing with snake and lion. हमारे बच्चे जो है सांपों के साथ और सिंहों के साथ खेलेंगे। आपले लेकरं जे आहे सर्प आणि विंचू बरोबर ते खेळतील. Now if we see our children going near the snake, we'll shout, "Hey, snake, come immediately." अभी हमारे बच्चे किसी सांप के पास जाने से हम चिल्लाने लगते, देखो सांप है, वहां से भागकर आ जाओ। आता आपलं लेकरं जर सापाकडे जात असताना आपण पाहिलं तर आपण ओरडू लागतो, साप आहे, विंचू आहे, तुम्ही इथे या. But our Lord rules this world for 1,000 years. लेकिन जब हमारा प्रभु 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य पण करेगा आपला प्रभु जेव्हा 1000 वर्षासाठी राज्य करेल You can see your child playing with a snake. उस समय आप देखेंगे कि आपका बच्चा सांप के साथ खेलता है तेव्हा तुम्ही पाहाल की तुमचा लेकरू सर्पाबरोबर खेळतो. And you will not be afraid. और आप उससे भयभीत नहीं होंगे। तेव्हा तुम्हाला भीती वाटणार You नाही. may ask, child, what you are doing?
आप पूछ सकते हैं बच्चे तुम क्या कर रहे हो? तुम्ही विचारणार हे बाळा तू काय करतोस? Mummy, I am playing with a snake. मम्मी मैं तो सांप के साथ खेल रहा आई हूँ. मी सापाबरोबर खेळतोय. What the mummy will say? नहीं मम्मी क्या कहेगी? आई काय म्हणणार? Okay, it's fine. Play nicely. Bring the snake also home. I want to give some milk to the snake. ठीक है तुम अच्छे से सांप के साथ खेलो, उसके बाद उसे घर में भी लेके आओ, मैं उसको थोड़ा दूध भी दूंगी. आई म्हणणार हो चांगल्या रीतीने खेळ आणि त्यानंतर त्याला घरी आण, मी त्याला दूधही देणार. So everything there will be peaceful. सब कुछ वहाँ पर शांतिमय होकर दिखाई देगा. सर्व काही शांतीने होत असेल. Even a dog will not look at another dog and bark. और एक कुत्ता भी दूसरे कुत्ते की ओर देखकर नहीं भौंकेगा. एक कुत्रा दुसऱ्या कुत्र्याला पाहून भुकणार नाही. After that, the Satan will be again released from the bottomless pit. उसके पश्चात शैतान को फिर से अथाह कुंड में से निकाल दिया जाएगा. त्यानंतर अघात गुपातून सैतानाला सोडलं जाईल. Then again he will gather one group of people with a great amount of people, like the sand of the sea. He will gather an army and he will come against our फिर Lord. और एक बार वो जो है बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करेगा, जो समुद्र के किनारे की बालू के समान एक झुंड को इकट्ठा करके वो युद्ध करने के लिए आएगा. आणि तो परत एका मोठ्या समूहाला तयार करेल. समुद्राच्या वाळूसारखं अनेक लोकांना तो एकत्रित करून परत तो लढाईसाठी तयार होईल. All these bombs or these elements, they can be kept for thousands of years. ये जो सारे तत्व, ये सारे बम है, इसे कई हजारों वर्षों तक भी रखा जा सकता हे है. बॉम्ब आणि हे तत्वांना आपण 1000 वर्षापर्यंत साठवू शकतो. And in the final war, Bible says in Revelation 20 verse 9 that Lord will send his fire and destroy them. प्रकाशित वाक्य 20:9 में हम देखते हैं पर जब अंतिम युद्ध होगा उसके पश्चात परमेश्वर अपनी आंख को भेजकर उसे नष्ट कर देगा. आणि प्रकटीकरण 20वा अध्याय 9व्या वचनामध्ये आपण पाहतो परमेश्वर स्वतः अग्नी पाठवेल आणि त्या अग्नीच्या द्वारे हे सर्व नाश होतील. So before discovering the hydrogen bomb, हाइड्रोजन बम का आविष्कार करने के पहले हायड्रोजन बॉम्बचा शोध लावण्या अगोदर scientists were telling if all the bombs burst at a time, the world can be melted into 17 times. और वैज्ञानिक इस प्रकार कहते थे कि यदि सारे बम एक साथ विस्फोट हो जाएगा तो 17 बार पूरी पृथ्वी पिघल सकती है. वैज्ञानिक लोक म्हणत होते जगातले सर्व बॉम्ब जर बॉम्बचा स्फोट झाला तर ह्या जगाचा 17 वेळेस त्याचा नाश होऊ That शकते. was before discovering hydrogen bomb. वो भी हाइड्रोजन बम का आविष्कार करने के पहले की बात है. ह्या गोष्टी हायड्रोजन बॉम्बचा शोध लावण्याच्या अगोदर होते. So all the bombs are already ready. सारे बम तो पहले ही तैयार हो चुके हैं. सर्व बॉम्ब अगोदरच तयार And झालेले the आहेत. fire of God will come with all its power, which is more powerful than any other bomb in this world. परमेश्वर की आग जो उतरेगी वो और संसार के सभी बमों से भी अधिक शक्तिशाली आणि होगी. परमेश्वराचा अग्नी जेव्हा उतरेल ते जगात असलेले सर्व बॉम्बपेक्षा तो अधिक शक्तिशाली असणार. Sun, moon, star, all our universe, it is so vast. Just one big blast, everything will disappear. सूर्य चंद्रमा तारे हमारा पूरा विश्व देखने से इतना विशाल है, केवल एक ही विस्फोट के द्वारा सब जल नाश हो जाएगा. सूर्य चंद्र तारांगण एवढे मोठे एवढी विशाल आहे. एक आग किंवा एक स्फोट झाला तर बस सर्व काही जळून राख होईल. So when everything is burst and dissolved like this, जब सब कुछ इस प्रकार से विस्फोट होकर पिघल जाएगा तो जेव्हा सर्व तत्वे जळून राख होतील किंवा लया जातील तेव्हा where we will be? हम कहाँ होंगे? आपण कुठे असणार? When everything is disappear, even heaven, sun, moon, star, everything disappear, where we will be staying? जब सब कुछ गायब हो जाएगा, सूर्य चंद्रमा तारे स्वर्ग सब चला जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? आकाश पृथ्वी आणि सर्व सूर्य चंद्र तारांगण सर्व लया जातील तेव्हा आपण कुठे असणार? In Psalms 8:1 we read, भजन संहिता 8 का पहला वचन में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र संहिता 8वां अध्याय पहिल्या वचनात आपण पाहतो. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. हे प्रभु यहोवा तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है. हे परमेश्वरा आमच्या प्रभो सर्व पृथ्वीवर तुझे नाव किती थोर You आहे. have set the heavens above all heavens. तूने अपना सारा विभाग स्वर्ग के ऊपर दिखाया है. आणि तुने आपले आकाश या सर्व आकाशावर All उंच these लावलेला आहे. heavens, all the universe, everything will disappear, but we will be safe in the presence of God. ये सारे स्वर्ग ये सारे आकाश सब गायब हो जाएंगे लेकिन हम परमेश्वर के सम्मुख में रहेंगे. ह्या सर्व आकाश पृथ्वी आणि सर्व गोष्टी लया जातील पण आपण जे आहे परमेश्वरच्या सानिध्यात असणार. So what kind of blessed people we are. ऐसा तो हम कितने धन्य लोग हैं. असं आहे तर आपण किती धन्य आहोत. If we keep the whole universe together यदि हम सारे विश्व को एक साथ मिलाकर रखे तो आपण सर्व विश्वाला एकत्र बनवून ठेवलं and तर try to see the earth, और पृथ्वी को देखने का प्रयास करें तो आणि पृथ्वीला पाहायचा प्रयास केला we तर cannot see it. It's so small. वो इतना छोटा वो दिखाई भी नहीं देगी. एवढी छोटी आहे की ती दिसणारही नाही. But God is concerned about we people. लेकिन परमेश्वर फिर भी हम लोगों की फिक्र करता है. पण परमेश्वराला आपली काळजी आहे. Whenever we call upon Him, He come and answer our prayers. जब कभी हम उसको पुकारते हुआ आकर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है. जेव्हा केव्हा आपण त्याला पाहून हाक मारतो तो आपल्या प्रार्थनेचं उत्तर He heals देतो. our sicknesses.
वो हमारी सारी बीमारी से हमें चंगा करता है, सर्व आजारापासून तो आपल्याला सुटका देतो, He solves all our problems. हमारी सारी समस्याओं को वो सुलझाता आपले है। सर्व समस्या तो दूर करतो. But many times we don't understand our greatness. लेकिन कई बार हम अपनी महानता को समझ नहीं पाते। अनेक वेळेस आपली महानता श्रेष्ठता आपल्याला कळत नाही. God loves a single soul than all these things. इन सारी बातों से बढ़कर परमेश्वर एक अकेले एक प्राण से भी प्रेम करता है। सर्व गोष्टींच्या पेक्षा अधिक परमेश्वर एक व्यक्तीला किंवा He एका knows आत्म्याला तर प्रेम करतो. each and every one of us by name. वो हम हर एक को नाम लेकर जानता है। आपण प्रत्येकाला तो नावाने हाक मारतो किंवा नावाने He knows ओळखतो. all our problems. वो हमारी सारी समस्याओं को जानता है। तो आपले सर्व समस्या He ओळखतो. wants to wipe away all our tears. वो हमारे सारे आंसुओं को पोंछना चाहता है। आपले सर्व अश्रू पुसू इच्छितो. He is ready to solve all our problems. वो हमारी सारी समस्या को सुलझाने के लिए तैयार है। आपल्या सर्व समस्यांचं समाधान करण्यास तो तयार आहे. With a grateful heart shall we all shout three hallelujah loudly. शुक्रगुजार हृदय के साथ हम सब मिलके जोर से 3 हालेलुया बोलेंगे। अंतकरणाने उंच आवाजाने आपण 3 हालेलुया म्हणूया. Hallelujah! 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 Because we are really blessed people. क्योंकि सचमुच हम धन्य लोग हैं। कारण खरोखर आपण धन्य आहोत. Now, yesterday we studied that soon there is going to be a one world government. कल जैसा हमने ध्यान किया कि बहुत जल्दी संपूर्ण विश्व एक सरकार के अधीन आ जाएगा। काल आपण ऐकलं की संपूर्ण जग एका सरकाराच्या खाली So येईल. there must be a necessity for the one world government. Then only the one world government can be formed. ऐसा है तो वो एक सरकार की आवश्यकता है, तभी वो सारा संसार जो है एक सरकार के अधीन आएगा। एक सरकाराची गरज असली तरच संपूर्ण जग त्या सरकाराच्या खाली येणार. For that also in America everything is getting ready now. उसके लिए भी अमेरिका में सब कुछ अभी से तैयार हो रहा है। त्यासाठीही सर्व काही जे अमेरिकेमध्ये तयार होत आहे. Economically, America has already fallen down. आर्थिक रूप से देखने से अमेरिका पहले ही गिर चुका है। आर्थिक रीतीने पाहिलं तर अमेरिका आता खाली पडला आहे. Now their income is less than their expenditure. अभी उनका जो वेतन है उनके खर्चे से कम होकर दिखाई देता है। आता त्यांच्या खर्च जे वेतन आहे ते खर्चापेक्षा कमी आहे. And their moral standard is going down so low. और उनका नैतिक स्तर जो है बहुत अधिक कम होता जा रहा आणि है। त्यांची नैतिक स्थिती ही खूपच कमी होत आहे. Earlier because of God they came up. परमेश्वर के कारण ही वे ऊंचे उठे थे। पूर्वी ते परमेश्वराच्या द्वारेच उंचावले गेले. Now because they have rejected God, now God is going to reject them. लेकिन क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया इसलिए परमेश्वर अभी उनको त्याग देगा। पण आता परमेश्वराला त्यांनी नाकारले म्हणून परमेश्वर त्यांना नाकारणार आहे. Now in America, one man wants to marry another man, he can marry. One woman wants to marry another woman, she can marry. It's अभी permitted. अभी अमेरिका में जो है एक पुरुष यदि दूसरे पुरुष से विवाह करना चाहता है तो उसको अनुमति है। एक स्त्री यदि दूसरी स्त्री से विवाह करना चाहती है तो उसके लिए भी अनुमति दी गई है। तर आता अमेरिकामध्ये ही परवानगी दिली आहे. एका पुरुषाला जर दुसऱ्या पुरुषाबरोबर लग्न करायचं असेल तो करू शकतो. एक स्त्रीला जर दुसऱ्या स्त्री बरोबर लग्न करायचं असेल तर ती करू शकते. Very soon it will become a strong rule. और बहुत जल्दी वो एक कड़ा नियम होकर भी बदल जाएगा। आणि खूपच लवकर एक कडक नियम होऊन बदलेल. If somebody wants to marry another man, suppose Peter wants to marry John. अगर कोई पतरस यूहन्ना से विवाह करना चाहता है तो उदाहरणासाठी जर पेत्राला योहाना बरोबर लग्न करायचं असेल तर If he goes and tell the center pastor, we want to marry. यदि वो जाकर सेंटर पास्टर से बोलते ही भाषा में विवाह करना है तो जाऊन सेंटर पास्टरना म्हणेल हो मला ह्याच्या बरोबर लग्न करायचं आहे. Center pastor cannot say no. सेंटर पास्टर मना नहीं कर सकते। सेंटर पास्टर नाही म्हणू शकणार नाही. If he says no, the pastor will be arrested and put in the prison. यदि वो मना करेगा तो पास्टर को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। पास्टरांनी नाही म्हटलं तर पास्टरला जेल खाण्यामध्ये टाकण्यात येईल. The spiritual standard of the whole world is coming down, moral standards, so such things will happen very soon. और संसार भर का जो नैतिक स्तर बहुत अधिक गिरता जा रहा है इसलिए ऐसी बातें बहुत जल्दी होंगी। संपूर्ण जगामध्ये आध्यात्मिक स्तर आणि हे नैतिक स्तर कमी होत असल्यामुळे या सर्व गोष्टी लवकरात लवकर घडतील. So here we see a conference. यहाँ पर हम एक कॉन्फ्रेंस को एक संगठन को देखते हैं। येथे आपण एक संघटन पाहतो. There's a place by name Copenhagen. और ये जो स्थान है ये कोपनहेगन नाम का स्थान है। कोपनहेगन हे ते स्थान आहे. There all the presidents of the world were called together. वहाँ पर जो संसार भर के सभी नेताओं को एक साथ बुलाया गया था आणि सर्व प्रेसिडेंट लोकांना एका ठिकाणी बोलवण्यात And आले they had a conference और उन्होंने वहाँ पर ऐसे एक गोष्ठी की आणि तिथे त्यांचा एक वाद झाला. to discuss about the global warming.
और जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बातचीत करने के लिए ग्लोबल वॉर्मिंग याविषयी वाद विवाद करण्यासाठी If I explain everything, it will take a lot of time. ये सब कुछ विस्तार से बताने से समय अधिक हो जाएगा। या सर्व गोष्टींचं विवरण करायला गेलं तर खूप वेळ लागेल। There is a place by name ozone zone in our universe. हमारे विश्व में देखने से एक ओजोन जोन करके नामक स्थान है आपल्या विश्वामध्ये ओझोन झोन नामक एक क्षेत्र आहे। It's formed by different gases. और वो विभिन्न प्रकार की वायु के द्वारा बनाया गया है। वेगवेगळ्या प्रकारच्या वायूने ते तयार झालं आहे। It filters all the unwanted rays which are coming from the sun. Only the good rays are sent to the earth. सूर्य से जो भेजी जाने वाले अनावश्यक किरणें उन सबको वो छान कर केवल अच्छी किरणों को इस पृथ्वी पर वो भेजता है। सूर्यातून निघणारे सर्व जे किरणे आहेत त्याचे छालन करून जे आहे ते बाकीचं शुद्ध जे किरण आहेत तेच ते पृथ्वीवर पाठवते। Now, above the developed countries, अभी विकसित देशों के ऊपर देखे तो आणि ज्या देशाची उन्नती झाली आहे तिथे जर पाहिलं many तर holes have been formed in many places in the ozone zone. ये जो ओजोन की जो क्षेत्र है इसमें कई तरह के छेद दिखाई देते हैं। ओझोन क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे छिद्र झाले आहेत। Because developed countries have so many factories. क्योंकि विकसित देशों में कितने कारखाने दिखाई देते हैं। कारण उन्नती प्राप्त केलेल्या त्या देशामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे कारखाने आहेत। Carbon monoxide, carbon monoxide, the gas which comes from our fridge, they all go up and they disturb and destroy this ozone zone. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और इस प्रकार की कई प्रकार की वायु जाकर ये ओजोन की परत को वो खराब कर देती है। आणि हे कार्बन डायऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड असले वेगवेगळे प्रकारचे वायू वर जाते आणि त्या ओझोनचं जे क्षेत्र आहे त्याला ते बिघडून Now टाकते। to avoid this, they are compelled to sign an agreement. अभी इस बात से बचने के लिए उनको ऐसा एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो गए हैं। आणि ह्या गोष्टींना टाळण्यासाठी जबरदस्तीने त्यांना एक करार करावा लागतो। After some time, all the rich countries and developed countries, they will be starting factories in the poor factories, poor countries. कुछ दिनों के पश्चात जो धनी देश के लोग हैं वे लोग आकर गरीब देशों में आकर अपने कारखानों को खोलेंगे। आणि काही दिवसानंतर हे श्रीमंत देशाचे लोक गरीब देशामध्ये येऊन कारखाने उघडतील। So that ozone zone in their country will not be affected, or it may not may not develop a hole. ताकि उनके जो देश में दिखाई देने वाले ओजोन की परत है वहाँ पर कोई छिद्र न हो। त्यांच्या देशात असलेल्या ओझोनच्या त्या भागामध्ये कुठल्याही प्रकारचे छिद्र होऊ नये म्हणून ते असे करतील। So when they were discussing to do this, जब इस प्रकार से करने के लिए वे लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे थे आणि आपसामध्ये जेव्हा ते विचार करत होते की आपण असं करावं म्हणून, it's an MP from England. और ये जो इंग्लैंड का जो एक एमपी है आणि इंग्लंडचा एक एमपी He होता, called all the Americans उसने सारे अमेरिकी लोगों को बुलाया सर्व अमेरिकेतल्या लोकांना त्यांनी and बोलावलं told them, tell your President Obama not to sign this agreement. और उसने कहा कि अपने राष्ट्रपति ओबामा से कहो कि वो इस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर न करे। आणि तुमच्या राष्ट्रपती ओबामाला तुम्ही सांगा की तो ह्या कागदावर जे आहे हस्ताक्षर करू नये। If he signs, you will lose all your freedom. यदि तुम हस्ताक्षर करोगे तो अपने सारी आजादी को खो बैठोगे। जर तू असं हस्ताक्षर केलास तर तुमचे सर्व जे स्वतंत्रता आहे ते तुम्ही गमावाल। But nobody listened to him. लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। कुणी त्याचं काही ऐकलं नाही। In 2009, the agreement has already been signed by all the countries of this world. और 2009 में जो है संसार के सभी देशों ने इस करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 2009 मध्ये सर्व राज्यातल्या लोकांनी त्यावर सही केली। So all the countries' property will be distributed very soon. इस प्रकार से सभी देशों की जो संपत्ति वो एक में मिलकर बांटी जाएगी। आणि सर्व देशातलं जे धन संपत्ती आहे लवकरात लवकर त्याचं In the name of होईल। global warming, now the whole world is getting united as one government. अभी ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के नाम से सारा संसार जो एक सरकार के अधीन आने वाला है। ग्लोबल वॉर्मिंग ह्या नावाच्या खाली संपूर्ण राज्य एका सरकाराखाली येणार आहे। Another problem is और एक समस्या है, आणि अजून एक समस्या ही आहे, America is facing financial crisis. अमेरिका में अभी आर्थिक संकट है। अमेरिकेमध्ये आर्थिक संकट आहे। Now Obama is talking in the parliament. अभी ओबामा जो है अपने संसद में बातें कर रहा आणि है। ओबामा आता आपल्या संसदमध्ये बोलत He आहे। is telling we need a powerful civilian army. Our civilian force, our police force should be equal to army. वो कहते हैं कि हमारी जो घरेलू सेना है वो हमारी सेना के बराबर ही होना चाहिए। आणि तो म्हणतो की आपली जी पोलीस सेना आहे ते फौजाच्या बरोबर असलं पाहिजे। And he is the opposition leader. और ये जो विपक्षी पक्ष का नेता है आणि तो विरोधी पक्षाचा पुढारी Asking why आहे। it is necessary? वो कह रहा है ये सब क्यों आवश्यक है। तो म्हणतो ह्या गोष्टींची काय Who गरज, is our enemy? What threat we have? हमें क्यों डरना है, कौन हमारा शत्रु है। आपल्याला काय भिण्याची गरज, आपला शत्रू कोण आहे। Why our police force should be so powerful like an army? क्यों हमारी पुलिस की जो शक्ति है वो सेना के समान शक्तिशाली होना है। आणि पोलीसची जी शक्ती आहे ते फौजी शक्तीसारखं का व्हावं। Obama gave no answer.
ओबामा ने कोई जवाब नहीं दिया, ओबामाने काही उत्तर दिलं नाही, but he knows the answer. लेकिन वो जवाब को जानता है. त्याला त्याचं उत्तर माहित आहे. Answer is that America will fall very soon. जवाब ये है कि अमेरिका बहुत जल्दी गिर जाएगा. त्याचं उत्तर हे आहे की अमेरिकाचं लवकरात लवकर पतन होणार Then the आहे. share market will fall down. और उस समय जो उनका शेयर मार्केट है वो सब गिर जाएगा. त्यांचं शेअर मार्केट लवकरात लवकर खाली Then पडेल internal revolt will take place. और तब उस समय भीतर कई प्रकार षड्यंत्र होंगे. आणि आतल्या आत काही ना काही षडयंत्र होतील. Because all of a sudden all the people will lose their money. क्योंकि अचानक ही सब लोग अपने पैसे को खो बैठेंगे. खूपच लवकर सर्वांचे पैसे ते गमावतील. Then internal revolt will come. उस समय भीतर ही भीतर एक बड़ा युद्ध हो जाएगा. आणि आतल्या आत एक युद्ध होईल. If the police is not powerful, they cannot control. यदि पुलिस शक्तिशाली नहीं है तो वो उसे नियंत्रण नहीं कर जर पाएगी. पोलीस शक्तिशाली नसेल तर तो त्यांचं नियंत्रण करू शकणार नाही. Now in a place by name Georgia, अभी जॉर्जिया नाम के स्थान में जॉर्जिया नावी एका ठिकाणी they have made many coffin box. उन्होंने इस प्रकार से कई कफन की पेटियां तैयार की है. आणि असं त्याने अनेक प्रकारचे शवपेटी तयार केली आहे. 50,000 boxes are made and already kept ready. 50,000 शव पेटी को अभी से बनाकर तैयार रखा गया है. 50,000 शवपेटी तयार करून ठेवले And आहेत. the box is so big, we can put 4 bodies inside that box. और वो जो शव पेटी इतनी बड़ी है कि एक शव पेटी के अंदर हम 4 शरीर को रख सकते हैं. आणि शवपेटी एवढी मोठी आहे की त्यामध्ये 4 प्रेत आपण ठेवू शकतो. Opposition leader is asking why such boxes are made and kept. विपक्षी नेता के लोग पूछ रहे हैं कि क्यों इस प्रकार के बॉक्स बना के रखे गए हैं. विरोधी पक्षाचे पुढारी विचारत आहेत असे पेट्या का तयार केल्या आहेत. So they don't publish all this news very easily. बहुत आसानी के साथ ऐसा समाचार तो सब बाहर घोषित नहीं किए सर्व जाते. समाचार सोप्या रीतीने बाहेर टाकत नाहीत. In short, we have to say American government is expecting a revolt, internal revolt. संक्षेप में हम कहे तो जो अमेरिकी सरकार है वो भीतर ही भीतर एक युद्ध का सामना करने के लिए तैयार हो रही है. आणि संक्षिप्त मध्ये सांगितलं तर अमेरिकन सरकार जे आहे आतल्या आत एक विरोधी पक्षाचा सामना करण्यास तयार होत Now आहे. the whole world is controlled by dollar. Very soon that will not happen. और सारा संसार अभी जो डॉलर से नियंत्रित है, लेकिन बहुत जल्दी फिर ऐसा नहीं होगा. आणि संपूर्ण जग जे आहे डॉलरद्वारे नियंत्रित आहे आणि ते असं होणार नाही. Now many big companies in India, they are changing over their transaction from dollar to euro. और बहुत सारे जो बड़ी बड़ी हमारे भारत देश की कंपनियां हैं वो लोग जो है अपना लेन देन वो डॉलर को छोड़कर अभी वो यूरो से करने जा रहे हैं. भारत देशामध्ये असलेले मोठमोठे कारखाने जे आहे आता डॉलरचं घेणं देणं नाही पण ते आता युरोमध्ये बदलत आहेत. So suddenly if an internal revolt comes, क्योंकि अचानक से एक भीतरी क्रांति आ जाने से आणि आतल्या आत एक युद्ध सुरू झालं the तर president will become the dictator. तो फिर राष्ट्रपति जो है तानाशाह बन जाएगा. आणि हा जो राष्ट्रपती आहे तो तानाशाही No news होईल. will be given to the internet. फिर उस समय इंटरनेट में कोई समाचार नहीं दिया जाएगा. इंटरनेटमध्ये कुठलाही समाचार येणार नाही. Whosoever oppose a revolt against the government, they will be shot dead. Immediately they will kept in the box and they will be buried immediately. और जो लोग भी सरकार का विरोध करेंगे उनको तुरंत जो है गोली मारकर मार डाला जाएगा. उनको बॉक्स में रखकर तुरंत गाड़ दिया जाएगा. आणि जो कोणी सरकाराचा विरोध करेल त्याला तिथल्या तिथं गोळीबार होईल. त्याला मारून टाकेल आणि त्याचं शव जे आहे त्या पेटीमध्ये टाकण्यात येईल. And in America, there are many relief camps kept in different places. अमेरिका में बहुत सारे इस प्रकार से शरणार्थी कैंप कई स्थानों में तैयार किए गए हैं. आणि अमेरिकेमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी शरणाचे क्षेत्र तैयार झाले आहेत. So when lot of people are arrested, there must be place for them to be jailed. जब बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा तो उनको कारागृह में डालने के लिए स्थान भी चाहिए. अनेक लोकांना जेव्हा धरण्यात येईल तेव्हा त्यांना कारागृहामध्ये ही जागा पाहिजे. So from all these things, what we understand, इन सारी बातों से हम क्या समझते हैं? या सर्व गोष्टी पाहत असताना आपल्याला काय कळते. America is expecting a economical recession. हम जो है एक आर्थिक संकट के लिए अपेक्षा कर रहे हैं. आर्थिक संकट किंवा आर्थिक पाडाव लवकरात लवकर होणार आहे. Very soon it will happen. America will fall down. बहुत जल्दी ऐसा होगा, अमेरिका गिर जाएगा. खूपच लवकर अमेरिकाचा पाडाव होईल. So now they are getting ready secretly. वो गुप्त रूप से वे लोग तैयार हो रहे हैं. म्हणून गुप्त रीतीने ते तयार होत आहेत. So when America falls, अगर अमेरिका में गिरावट आएगी तो जर अमेरिकामध्ये एक पाडाव आला तर then European countries will take over. फिर उसके बाद जो यूरोपियन देश है वे लोग उसका कब्जा कर लेंगे. मग त्यानंतर युरोपियन देश त्यावर ताबा घेतील. They will appoint their own leaders and they will try to rule the world. वे लोग अपने नेताओं को ठहराकर वे लोग संसार के ऊपर राज्य करने का प्रयास करेंगे. आणि ते सर्व आपले पुढारे नेमतील आणि सर्व जगावर ते आपलं अधिकार गाजवतील. Now the European countries have divided the whole world into 10 states. अभी यूरोपीय देशों ने सारे संसार को 10 राज्यों में विभाजित किया है. युरोपियन आता राज्यांनी 10 राज्यामध्ये देशाला विभाजित केलं आहे. From the 10 states,
ये 10 राज्य जो हैं आणि हे जे 10 राज्य आहेत They've already displayed it in their net also. उन्होंने अपने नेट में उसको पहले से डाल भी दिया है। आणि नेटमध्ये त्यांनी आपलं नाव दाखल केलं आहे. So earlier we were thinking that 10 European countries will be ruling this world. और 10 यूरोपियन देश जो है इस संसार के ऊपर राज्य करेंगे। आपल्याला पूर्वी वाटत होतं की हे 10 राज्य जगावर राज्य Now करतील. people accept this as the fact. अभी लोग इसे वास्तविकता होकर समझ रहे हैं। आता ह्या गोष्टीला लोक खरं समजत आहेत. We read about 10 horns in the Bible. पवित्र शास्त्र में हम 10 घोड़ों के बारे में देखते हैं, प्रकटीकरणामध्ये 10 शिंगांविषयी आपण पाहतो. सिंहों के बारे में देखते हैं। They will be ruling with Antichrist. The whole world shall be ruled by them. वो सारा संसार मसीह विरोधी के द्वारा राज्य किया हे जाएगा। सर्व राज्य ख्रिस्त विरोधीच्या बरोबर ते राज्य करतील. Revelation 17:13 we read that they will have one mind. प्रकाशित वाक्य 17 का 13 में हम देखते हैं उनका एक ही मन होगा। आणि आपण प्रकटीकरण 17वा अध्याय 13व्या वचनामध्ये पाहतो त्यांचा एकच विचार असेल. They will give their power and strength to the beast. वे अपना सामर्थ और अधिकार उस पशु को दे ते देंगे। आपले सामर्थ्य अधिकार श्वापदाला देतात. Now these kings have not received the power. In the future only they will be receiving the power. अभी तो उनको सामर्थ नहीं मिला, लेकिन भविष्य में ही वे सामर्थ को पाएंगे। आता ह्यांना काही अधिकार मिळालेला नाही, भविष्यामध्ये ह्यांना मिळेल. Now it is commonly believed that the whole world shall be divided into 10, divided and ruled by 10 kings appointed by the European countries. अभी साधारण तौर पर इस बात पर विश्वास किया जाता है कि सारे संसार को जो है 10 राजाओं के द्वारा राज्य किया जाएगा, जिससे यूरोपियन देश के लोग उनके ऊपर उनको ठहराएंगे। आणि साधारण रीतीने सर्वांचा समज हे आहे की 10 राज्य युरोपियन राज्यांचं ते राज्य करतील आणि युरोपियन राज्य त्याच्यावर त्यांना अधिकार नेमतील. But for us, whether European country people will rule or all the whole world people will rule, that is not important. Whosoever rule, they will be working against the Christians. लेकिन हमारे लिए ये बात मुख्य नहीं कि यूरोपियन देश के लोग राज्य करेंगे या कोई और राज्य करेंगे, लेकिन ये बात है कि वे सभी लोग मसीह के विरोधी होकर दिखाई देंगे। आपल्याला कोणीही राज्य केलं तरी काही हरकत नाही, पण एक गोष्ट खरं आहे, जो कोणी राज्य करणार त्या काळामध्ये ते ख्रिस्त विरोधी होऊनच नाहीतर ख्रिस्ताच्या विरुद्धात ही कार्य करेल. So after the coming of the Lord, प्रभु के आगमन के पश्चात आणि येशूच्या आगमनानंतर all the Christians who want to stand for Jesus will be tortured. सभी मसीह लोग जो मसीह के लिए खड़े होने के लिए चाहते वे सब सताए जाएंगे। जे लोक ख्रिस्तासाठी उभं राहण्यास विचार करतात त्यांना ते छळतील. If you are not caught up at the coming of the Lord, यदि आप प्रभु के आगमन में उठा लिए नहीं जाएंगे तो जर तुम्ही येशूच्या आगमनामध्ये उचलला गेला नाही the तर one way for your salvation is dying as a martyr. आपके लिए जो मरने के लिए एक ही तरीका है वो कि आप शहीद होकर मरना है। आणि तुम्हाला मरण्याचा एकच प्रकार म्हणजे तुम्हाला रक्तसाक्षी होऊन मरावं लागेल. Now I will show you some kind of tortures which have taken in place in this world. अभी इस संसार में कई प्रकार के जो सताव हुए हैं उसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहता आता हूँ। सध्या काही प्रकारचे छळणूक जगामध्ये घडलेले आहेत त्याविषयी मी तुम्हाला सांगतो. Very simple things only, very bad things I am not showing. मैं ज्यादा बुरी बातें नहीं दिखा रहा हूँ, केवल ये तो साधारण सी बात है। आणि अगदी गंभीर गोष्टी मी तुम्हाला सांगत नाही, अगदी साधारण सोप्या गोष्टी मी सांगत आहे. You see whether you can stand such a torture or not. आप देखिए कि क्या आप इस प्रकार के सताव को सहन कर पाएंगे कि नहीं। तुम्ही हे पहा काय तुम्हाला हे सर्व छळणूक सहता येईल की नाही. Here we see a person. यहाँ पर हम एक व्यक्ति को देख रहे इथे हैं, आपण एका व्यक्तीला पाहतो, They kept him in the prison उसे बंदीगृह में रखा है त्याला कारागृहात ठेवण्यात आलं and they kept so many rats hungry for so many days. और कई चूहों को बहुत दिनों तक भूखा रखा है। आणि अनेक उंदीर आहेत ते अनेक दिवसापासून भुकलेले आहेत. Now they are allowed to bite him. अभी उसे काटने के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता आणि है। त्या कारागृहामध्ये ह्या व्यक्तीला चावण्यासाठी They त्यांनी are सोडलं आहे. biting little by little and they are eating. थोड़ा थोड़ा करके उसे काट के वे खा रहे हैं। आणि थोडं थोडं त्याला चावून ते खात आहेत. How painful it would be. वो कितना दर्दनाक न हुआ। विचार करून पहा किती वेदना त्याला होत These असतील. are the tools which are used for remove the fingernails. और जो हाथों की उंगलियों की नाखून को काटने के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। बोटाचे नख कापण्यासाठी ह्या उपकरणांचे उपयोग केला आहे. They'll put the finger here and go on pressing it. It will come out. उंगली को रखकर इस प्रकार से वे दबाएंगे, वो नाखून बाहर आ जाएगा। आणि त्या बोटाला त्या यंत्रामध्ये ठेवतील आणि त्याला दाबतील, मग ते नख बाहेर येईल. This is called as the Iron Maiden. और ये जो एक लोहे का एक ऐसा सांचा दिखाई देता है, आयर्न मेडन असं म्हणतात. It is to torture the woman. वो एक स्त्री को सताने के लिए है। स्त्रियांना सतवण्यासाठी आहे. They will open it. उसे खोलेंगे, त्याला ते उघडतील. Inside it will be full of spears. उसके अंदर पूरे जो है वो चुभाने वाले ऐसे कांटे हो
पर्चियां होंगी। आणि आत ते उघडल्यानंतर त्यामध्ये असं टोचणारे अनेक वस्तू असतील. When they close it, all the spears will come and prick you. और वो जब सांचों को ऐसे बंद करेंगे तो ये सारे के सारे कांटे आपको आप चुभेंगे। आणि ते जेव्हा यंत्र बंद करतील तेव्हा सर्व टोचणाऱ्या वस्तू आपल्या शरीरात हातात 3 किंवा days शरीरात you have to जाईल. suffer like this and you have to die. इस प्रकार से कई दिनों तक ऐसे कष्ट सहते सहते मरना होगा। 2-3 दिवसासाठी आपण हे त्रास सहन करत करत मरावं लागेल. How many sisters are willing to die like this? कितने बहन लोग इस तरह से मरने के लिए तैयार हैं? किती बहिणी तुम्ही ह्या प्रकारे मरण्यासाठी If you तयार don't आहात? want to die like this, now itself receive Holy Spirit and get ready for the coming of the यदि Lord. आप मरना नहीं चाहते तो आप अभी से पवित्र आत्मा पाके प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाइए। असं जर तुम्हाला मरायचं नसेल तर आत्ताच पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य प्राप्त करून येशूच्या आगमनासाठी तयार व्हा. Here we see one girl, यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हे हैं। आपण एका मुलीला पाहतो. his finger is kept inside this and they are tightening the screw. Oh, everything will become flat. उसकी उंगली को यहाँ रख के वो स्क्रू को दबा रहे, इस तरह से सब कुछ वो चपटा हो जाएगा। आणि त्या यंत्रामध्ये त्या मुलीचा हात ठेवतील आणि त्याला बंद करायला सुरुवात करतील तेव्हा तिचा हात जे आहे सपाट होणार. Here we see a boy. यहाँ पर एक लड़के को देख रहे इथे हैं आपण एका मुलाला पाहतो. His head is fixed in between two fixed slabs. और उसका जो सिर है वो 2 स्लैब के बीच में दबा दिया गया है। आणि त्याचं जे डोकं आहे 2 स्लॅबच्या मध्ये अडकवलेलं आहे. And he is tightening the nut. और वहाँ ऊपर से वो नट को टाइट कर रहा आणि है। वरून तो व्यक्ती जो आहे नट टाईट करत आहे. Come and hit that person in that brain. All the pressure will come. सारा जो दबाव है वो उसके दिमाग पर पड़ेगा। आणि हे जे तणाव आहे त्या मुलाच्या डोक्यावर ते पडेल आणि तो दाबेल. They will go on increasing the pressure. उसके दबाव को बढ़ाते जाएंगे आणि त्याला ते जोराने दाबत राहतील. It will be unbearable pain. और असहनीय दर्द होगा। आणि ते असहनीय वेदना असेल. When it comes to the maximum pressure, और जब उसका सबसे अधिक सीमा तक वो दबाव पहुंचेगा तो आणि जितका अधिक होईल तितकं जेव्हा ते दाबतात तेव्हा suddenly it will crash, it will become flat. फिर उसके बाद वो एकदम से टूट जाएगा या दब जाएगा। ते चिरून जाईल, ते फुटणार आणि ते सपाट होणार. This is also such kind of a mission. ये भी एक इस प्रकार की एक मशीन है। हे एक प्रकारचं मशीन आहे. Here we see another mission. यहाँ पर और एक मशीन को हम देख रहे हे हैं। अजून एक मशीन आपण पाहतो. So 3 lines are there. उसमें 3 ऐसी रेखाएं हैं, तेथे 3 रेषा आहेत, 3 lines. सीमा आहेत. 3 सिंह है। So they can insert the body here. They can insert the body here. वो यहाँ इस शरीर को इसके अंदर फंसाते हैं। आणि त्या शरीरामध्ये तेथे ते फसवतील. But the gap will be more. फिर उसके पहले जो है इसको वो बीच की जो जगह है वो अधिक होगा। Then they will आणि start rotating. मधली जागा जरा मोठं असेल पहिलं. They will start rotating the wheel. फिर उसके बाद वो पहिया घुमाने लगेंगे आणि मग ते चक्र ते फिरवतील. Spear will make some marks in the body. और जो धीरे धीरे करके जो कांटे वो शरीर के अंदर घुसते जाएंगे। आणि तिथे जे भरची आहे ते मनुष्याच्या शरीरात प्रवेश करेल. Then they will make the gap less. उसके बाद वो जगह के अंतर को कम कर देंगे। मग त्याच्या मधील जे अंतर आहे ते कमी करतील. So when a person goes inside and come out, he'll be like a sugar cane. जब वो व्यक्ति उसके अंदर जाके बाहर आता है तो वो एक गन्ने के समान रहेगा। आणि तो त्या यंत्राच्या आत जाऊन बाहेर येताच एका उसासारखा तो असणार. And full of blood. All the blood will go. और पूरा खून निकल आएगा, पूरा खून के अंदर रहेगा। आणि तो संपूर्ण रक्त त्याचं बाहेर निघेल आणि तो असा रस काढलेला उसासारखा असणार. We see the feet of a person. और उस व्यक्ति के जब हम पाँव को देखते हैं तो आणि त्या व्यक्तीचा पाय आपण जेव्हा पाहतो In between the nail and the flesh, they have inserted something. और जो नाखून के बीच में और उसके त्वचा के बीच में कुछ उन्होंने घुसा के रखा हुआ आणि है। ते मांस आणि नखाच्या मध्ये काहीतरी एक वस्तू अटकवलेली आहे. Like that, they will do in every finger. इस प्रकार हर एक उंगली में वो घुसाएंगे। ह्या प्रकारे प्रत्येक बोटामध्ये ते तसं करतील. This is another instrument. ये भी एक प्रकार का एक औजार है। हे पण एक वेगळ्या प्रकारचं यंत्र They आहे. will keep the body inside and go on tightening it. शरीर को उसके अंदर रख के उसको टाइट करते जाएंगे। शरीराला त्याच्या आत अडकवतील आणि त्याला टाईट करत राहतील. Bottom, everything will come out. ऊपर से नीचे से लेकर नीचे तक सब बाहर आ जाएगा। वरून खालीपर्यंत सर्व काही असंच खाली येईल. This also almost the same thing. ये भी उसी के समान एक बात है। हे पण त्याच प्रकारे एक गोष्ट आहे. Keeping the body here, they will go on tightening the screw. शरीर को यहाँ पर रख के उसको स्क्रू टाइट करते रहेंगे। शरीराला ते ठेवतील आणि स्क्रू टाईट करायला लागतील. It's a terrible figure. You may not be able to see. Better not to see. ये एक बहुत भयानक चित्र है, आप उसे देख नहीं पाएंगे, नहीं देखने से ही अच्छा है। आणि हे खूप भयानक चित्र आहे. ते तुमच्यानी पाहावे येणार नाही. नाही पाहिलं तर बरं आहे. Hole from the bottom, they inserted it and brought the spear in the mouth. और वो नीचे से लेके वो उन्होंने अंदर घुसाते हुए नीचे से छेद करके अंदर घुसा के वो जो भाले को वो मुंह के रास्ते से बाहर निकालते हैं। आणि हे जे भाला आहे ते खालून ते आत भोसकलेलं आहे आणि ते तोंडातनं बाहेर काढत आहेत. So
I am not showing the terrible figures. मैं आपको भयंकर चित्र नहीं दिखा रहा हूँ. ह्याच्यापेक्षा अजून भयानक चित्र आहे ते मी तुम्हाला दाखवत नाही. If you see the women, how they are tortured. स्त्री को किस प्रकार से सताया जाता है वो देखने से. आणि जर स्त्रियांना कसं ते छळतात ते जर दाखवलं तर I cannot tell it from the stage. मैं उसे आपको स्टेज से बता नहीं सकूंगा. या स्टेजवर मी तुम्हाला सांगता येणार नाही. We cannot explain. उसका मैं विवरण नहीं दे सकता. त्याचं मी विवरण देऊ Unbearable, शकत- unbearable. वो एक असहनीय बात होगी. या सर्व असहनीय गोष्टी Let आहेत. us not be careless in our spiritual life. इसलिए हम अपने आत्मिक जीवन के प्रति लापरवाह न हो. प्रियानो, म्हणून आपल्या आध्यात्मिक जीवनाविषयी आपण निष्काळजीने राहू नये. The coming of the Lord is very, very near. प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है. येशूचं आगमन खूपच जवळ आहे. In one place, they pull the tongue of a Christian. एक मसीह की जीभ को वो पकड़ के खींचेंगे एका ठिकाणी त्यांनी ख्रिस्ती व्यक्तीचं जीभ जे आहे ओढून काढलं And they nail it on the floor. और उससे वो भूमि के ऊपर गाड़ देते हैं. आणि त्या जमिनीवर त्याला ठोकून He'll ठेवतात. be lying down there asking for water, crying, and he will die after 2-3 days. वहीं पर चिल्लाते चिल्लाते पानी के लिए रोता रहेगा. 2-3 दिन के पश्चात वो व्यक्ति मर जाएगा. आणि जमिनीवर तो तडपडत राहील. पाण्यासाठी तो मागणी करत राहणार. पाणी मिळणार नाही, तो तसाच मरेल. So those who want to suffer like this, जो इस प्रकार कष्ट उठाने के लिए चाहते हैं, ज्यांना ह्या प्रकारे छळणूक सहायचं आहे, you can be careless in your spiritual life. आप अपने आत्मिक जीवन में लापरवाह होकर रह तुम्ही लीजिए. आपल्या आध्यात्मिक जीवनाने मध्ये निष्काळजीने राहा. This pain will be unbearable. ये जो दर्द है वो असहनीय होगा. हे जे वेदना आहे ते असहनीय You will आहे. not die in a single day. आप एक ही दिन में नहीं मरेंगे. तुम्ही एका दिवसात मरणार नाही. Sometimes you may be tortured for 3.5 years also. कई बार हो सकता है पूरा 3.5 वर्ष आपको सताया जाएगा. होऊ शकते तुम्हाला 3.5 वर्षापर्यंत छळतील. Bible says if those times are not reduced, even the chosen people will backslide. पवित्र शास्त्र कहता है कि यदि वे दिन घटाए नहीं जाते तो चुने हुए लोग भी पीछे हट सकते हैं. बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे त्या संकट काळ जर कमी केलं नाही तर निवडलेले लोकही जे आहे पतन पावतील. So to escape all this tribulation and to make ourselves worthy to stand before the Son of Man, इन सारे महाक्लेश से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाने के लिए या सर्व गोष्टीपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी मनुष्यपुत्रापुढे let us kneel उभा down. राहण्यासाठी Let us kneel down and suffer in our prayer. हम घुटने टेक कर प्रार्थना में कष्ट उठाएं. आपण गुडघे टेकून आपल्या प्रार्थनामध्ये कष्ट सहूया. Those who are suffering, standing on their knees and praying for the long time, when the trumpet sound, they will hear the trumpet sound, they will be transformed, they will be caught up at the coming of the Lord. जो लोग अधिक समय घुटने पर खड़े होकर अपने प्रार्थना में कष्ट उठाते हुए लोग जब नरसिंह का शब्द फूका जाएगा उस समय वे नरसिंह का शब्द सुनकर वे मध्य आकाश में उठा लिए आणि जाएंगे. आता जे गुडघ्यावर उभं राहून क्लेश सहतील आणि रडून प्रार्थना करतील, जेव्हा तुतारीचा नाद होईल तेव्हा ते ऐकतील आणि बदलून If you जातील. cannot suffer in prayer now, if you cannot take fasting and prayer, at the time of torture, do you think that you can bear all these sufferings and stand for Jesus? यदि आप अभी कष्ट उठाकर प्रार्थना नहीं कर पाते, उपवास लेकर प्रार्थना नहीं कर पाते, तो क्या आप सोचते हैं कि महाक्लेश के समय में आप उस समय मसीह के लिए कष्ट उठा पाएंगे? आता तुम्ही कष्ट सहन करून प्रार्थना करू शकत नाही, गुडघ्यावर बसून उपास घेऊन प्रार्थना करू शकत नाही, तर काय तुम्हाला वाटतंय का संकट काळामध्ये तुम्ही हे सर्व संकट सहताल? So God is giving us many chances to correct our life. हमारे जीवन को सुधारने के लिए परमेश्वर हमको कई अवसर देता है. आपलं जीवन सुधारून काढण्यासाठी परमेश्वर आपल्याला वेगवेगळे संधी देतो. If you don't pray at least for 1 hour, यदि हम कम से कम 1 घंटा तो भी प्रार्थना नहीं करते जर तो आपल्याने 1 तास ही प्रार्थना करता येत नाही तर don't think about the coming of the Lord in dream also. फिर स्वप्न में भी प्रभु के आगमन के बारे में सोचना नहीं. स्वप्नातही विचार करू नका की येशूच्या आगमनामध्ये आपण जाणार म्हणून. So when we read about the disciples, चेलों के बारे में हम देखते हैं. जेव्हा आपण शिष्यांविषयी पाहतो, when the early morning Jesus got up and prayed, they were sleeping. बड़ी भोर को जब यीशु उठ के प्रार्थना कर रहा था वे लोग सो रहे थे. जेव्हा पहाटे जेव्हा येशू उठून प्रार्थना करत होता शिष्य झोपत He होते. took Peter and James and John and went to the Mount of Transfiguration. पत्रस याकूब और यूहन्ना को लेके वो रूपांतर पहाड़ पर गया. आणि पेत्र योहान आणि याकोबाला घेऊन ते त्या परिवर्तित डोंगरावर तो गेला. He thought they were more spiritual than others. उसने सोचा कि ये लोग उनसे भी बाकी सबसे अधिक आत्मिक है. येशूला वाटलं की इतरांपेक्षा हे थोडं आत्मिक आहेत. But Luke 9:32 says they were sleeping. लेकिन लूका 9 अध्याय का 32 वचन में कहा गया वे लोग वहाँ भी सो रहे थे. आपण लूक 9 अध्याय 32व्या वचनामध्ये लिहिलं आहे की ते तिथे झोपले Again, होते. Matthew 26:39 says, और मत्ती 26 का 29 में कहा गया है. आणि मग ते शुभवर्तमान 26-32 मध्ये म्हटलं आहे. he really wanted the prayer help from the disciples, but they were sleeping. और वे तो उस समय उसको प्रार्थना की सचमुच चेलों से आवश्यकता थी
लेकिन उस समय वे लोग सो रहे थे। त्यावेळेस येशूला शिष्यांची प्रार्थनेची गरज होती, पण त्यावेळेस शिष्य लोक झोपले होते. But later day they realized their mistake. लेकिन बाद में उनको अपनी गलती महसूस हुई। पण नंतर त्यांना त्यांची चूक They समजली all became powerful people of God. वे सब लोग परमेश्वर के लिए सामर्थी लोग बन गए। आणि ते सर्व परमेश्वरासाठी सामर्थ्यशाली बनले. Except one or two, all of them almost died as martyrs. एक या दो को छोड़ के बाकी सभी लोग शहीद होकर मर गए। एक किंवा दोघांना सोडून जे आहे इतर लोक सर्वजण रक्तसाक्षी होऊन मेले. So before the day of crucifixion, क्रूस पर चढ़ाए जाने के दिन के पहले वधस्तंभावर खिळल्या जाण्या अगोदर God told the disciples to pray. और प्रभु ने अपने चेलों से प्रार्थना करने के लिए कहा, आणि येशूने आपल्या शिष्यांना प्रार्थना करण्यास But सांगितले, they were sleeping. लेकिन वे सो रहे थे। पण ते झोपले होते. Next day, all kinds of trial came. इसलिए कई तरह की परीक्षाएं जब अगले दिन आई, म्हणून नंतरच्या दिवसात जेव्हा वेगवेगळ्या प्रकारची समस्या आले, Jesus took victory in every trial, every temptation. यीशु ने हर एक परीक्षा आजमाइश के ऊपर जय पाई। येशूने प्रत्येक संकटावर प्रत्येक परीक्षेवर तो जय मिळवला. But what about Peter and other disciples? लेकिन पतरस और दूसरे चेलों के बारे में क्या हुआ? पण पेत्र आणि इतर शिष्यांविषयी काय झाले? In every trial, they were miserably failed. हर एक परीक्षा में दुर्भाग्यवश रीति से वे लोग सफल हो गए। प्रत्येक परीक्षेमध्ये ते खूप वाईट रीतीने हारले. Now we will see some points by which we can understand the difference between those who are praying, those who are not praying and sleeping. अभी हम कुछ विषय देखेंगे जिसके द्वारा आप जो प्रार्थना करते हैं और जो प्रार्थना नहीं करते उनके बीच के हम अंतर को देख सकते हैं। आता काही गोष्टी आपण पाहूया. प्रार्थना करणाऱ्या व्यक्तीमध्ये प्रार्थना न करणाऱ्या व्यक्तीमध्ये असलेले फरक किंवा अंतर आपण When पाहूया. the soldiers came to arrest Jesus, जब सैनिक यीशु को पकड़ने के लिए आए थे जेव्हा सैनिक येशूला धरण्यासाठी आले, he asked them, whom you are seeking? और वो पूछने लगे तुम किसे ढूंढते हो? तो विचारू लागला, तुम्ही कोणाला शोधता? You are seeking the Jesus of Nazareth. उन्होंने कहा कि हम यीशु नासरी को ढूंढते हैं। ते म्हणाले, नासोरी येशूला आम्ही शोधत आहोत. He said, yes, I am Jesus, arrest me. उसने कहा मैं ही यीशु, मुझे पकड़ लो। हो, तो म्हणतो होय मीच येशू आहे, मला अटक करा. Let all the others go, you just harass me. तुम बाकी सबको चले जाने दो, तुम मुझे गिरफ्तार कर लो। म्हणतो इतरांना जाऊ द्या, सोडून द्या, मला तुम्ही अटक करा. But what about Peter? लेकिन पतरस के बारे में क्या था? पेत्राविषयी काय पाहतो? Read 18:25. 18 का 25 पढ़िए। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था, तो उसके स्वामी ने कहा कि ये और इसकी पत्नी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा Whoa. John 18:25. योहान शुभ वर्तमान 18 अध्याय 25 वचन. यूहन्ना का सुसमाचार 18 का 25। शमौन पतरस खड़ा हुआ ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, क्या तू भी उसके चेलों में से है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। Jesus said, yes, I am Jesus, arrest me. यीशु ने तो कहा हाँ मैं ही यीशु, मुझे पकड़ लो। येशूने म्हटले, होय मी येशू आहे, तुम्ही मला धरा. Peter said, I am not the disciple of Jesus, don't arrest me. लेकिन पतरस कहता है मैं यीशु का चेला नहीं हूँ, मुझे मत पकड़ो। पण पेत्र म्हणतो, मी येशूचा शिष्य नाही, मला धरू नका. We may be good people, we may have good desire. हम अच्छे लोग होंगे, अच्छा आग्रह होगा। आपण चांगले लोक असणार, आपल्यामध्ये असलेले आग्रही चांगलं But असेल. if we do not pray, when the trial comes, we cannot show that we are the disciples of Jesus. लेकिन जब परीक्षा हम प्रार्थना नहीं करते तो जब परीक्षा आएगी तो हम यीशु के चेले करके प्रकट नहीं कर पाएंगे। आपण प्रार्थना जर केली नाही तर योग्य वेळ जेव्हा परीक्षा येईल तेव्हा आपण येशूचे शिष्य आहोत किंवा लोक आहोत हे दाखवणार In नाही. China, when great revival was going on, और when China, great revival was going जब on, चीन में एक बड़ा संजीवन की बात हो रही थी, जेव्हा चीनमध्ये एक मोठा संजीवनाचा काळ होता, some 20 young boys went to preach the word of God. करीब 20 जवान लोग जो है वो प्रभु के वचन को प्रचार करने के लिए गए। 20 तरुण जण देवाचं वचन प्रचार करण्यासाठी गेले. Suddenly the police came. अचानक ही पुलिस आई आणि एक पोलीस तिथं आला. They wanted to arrest the leader. They asked, who is the leader? और वो उस नेता को गिरफ्तार करना चाहते थे। वो लोग पूछने लगे नेता कौन है? आणि त्यातला नेत्याला त्यांना अटक करायचं होतं. ते म्हणाले One boy त्याचा said, I पुढारी am the कोण आहे? leader. One boy said, I am the leader. एक लड़के ने बोला मैं नेता हूँ। एका मुलांनी म्हटलं की मी नेता आहे. Another girl said, I am the leader. दूसरी लड़की ने कहा नहीं मैं नेता हूँ। दुसरी मुलींनी सांगितले की मी All पुढारी the आहे. 20 said, I am the leader. सारे 20 लोग कहने लगे मैं ही नेता हूँ। आणि सर्व 20 जण म्हणू लागले आम्ही नेता आहोत. So police got angry. पुलिस क्रोधित हो गई। पोलिसाला राग आलं. They arrested all of them. उन्होंने सभी को गिरफ्तार कर लिया। सर्वांना त्यांनी अटक केले. Started beating them black and blue. All the bones, kneecaps, everything was completely broken. और उनका जो इस तरह से पिटाई की कि वो पूरा शरीर जो है नीला पड़ गया। उनका जो हड्डियां, उनकी घुटने सब टूट चुके। आणि त्याने एवढं मारले की सर्व शरीर निळ्या रंगाचं झालं आणि त्यांचा हात पाय सर्व मोडले आणि सर्व काही गुडघे वगैरे फुटले. But those Jews were not bothered.
लेकिन उन जवानों ने परवाह नहीं की। पण त्या तरुणांना काही काळजी आली They were नाही. getting filled in the spirit and praying. वे लोग आत्मा में भर के प्रार्थना कर रहे ते थे। आत्म्याने भरून प्रार्थना करत होते Suddenly power came upon them. अचानक ही उनके ऊपर सामर्थ उतरी आणि लवकरात लवकर एक सामर्थ त्यांच्यावर All उतरला. the bones broken and bruised, everything started breaking. They again went to the same place and preached the word of God. और जो सारी टूटी हुई हड्डियां थी सब जुड़ने लगी, सबका घाव ठीक हो गए और वे उसी स्थान में जाके परमेश्वर का वचन दोबारा प्रचार करने लगे। आत्म्याने भरता भरता त्यांचं सर्व जखम जे आहे बरं झालं. तुटलेले हाड परत बरे झाले. ज्या ठिकाणी त्यांनी प्रचार केले होते तिथे जाऊन परत ते प्रचार करू लागले. In the last days, one side there will be suffering also, one side there will be revival also. अंतिम दिनों में एक तरफ देखने से क्लेश भी होगा, दूसरी तरफ संजीवन भी होगा। आणि शेवटल्या दिवसांमध्ये एका ठिकाणी जे आहे क्लेश असेल, दुसऱ्या ठिकाणी संजीवनी असेल. Those who pray nicely in of itself, they will be used by God at the time of revival. और जो लोग अभी अच्छे से प्रार्थना करते हुए लोग संजीवन के दिनों में इस्तेमाल किए आणि जाएंगे। जे आतापासूनच प्रार्थना करतात त्या काळामध्ये त्यांचा बचाव होईल. And secondly, in John 18, 10 and 11 we read. और दूसरा यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय का 10 और 11 वचन में हम देखते हैं। योहानाचे पत्र सुवार्ता 18 अध्याय 10 आणि 11 मध्ये आपण पाहतो. Please read in Hindi. शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलकुस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार काठी में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? He was listening to the word of God for 3.5 years. 3.5 वर्षों तक वो परमेश्वर का वचन सुन रहा था। 3.5 वर्षापर्यंत पेत्र येशूचे वचन ऐकत होता. He told him, love your enemies, do good unto them. और उसने कहा कि तू अपने शत्रुओं के साथ भी भलाई करना है आणि शत्रूंवर प्रेम कर, त्यांच्यासाठी तू चांगलं भलं कर. Forgive those who work against you. और जो तेरे विरोध में काम करते उन्हें तू क्षमा कर। जे तुझ्या विरोधात काम करतात त्यांना तू क्षमा कर. But nothing entered into the heart of Peter. लेकिन पतरस के हृदय में कुछ भी प्रवेश नहीं किया, पण पेत्राच्या अंतःकरणामध्ये काही प्रवेश झाला नाही. Because his prayer was almost zero. क्योंकि उसकी प्रार्थना का जीवन तो बिल्कुल शून्य था। कारण त्याचं प्रार्थनेचं जीवन शून्य होते. But in Luke 22:51 we read about our Lord Jesus. लेकिन लूका का सुसमाचार 22 अध्याय का 51 वचन में यीशु मसीह के बारे में हम देखते पण हैं। लूक 22:51 वचनामध्ये आपण पाहतो. Peter cut the ear. In Hindi it is night. Peter ने कान को उड़ा दिया. But Jesus came and fixed it again. और पतरस ने जो है उसका दाहिना कान उड़ा दिया, लेकिन यीशु ने आकर उसे दोबारा जोड़ दिया। पेत्राने त्याचं कान उपसून टाकलं, पण येशूने येऊन परत ते जोडलं. Because Jesus prayed, he was able to practice what he was preaching. क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला था, इसलिए जो उसने प्रचार किया उसको अभ्यास में वो ला सका। येशू ख्रिस्त प्रार्थना करत होता म्हणून जे त्यांनी प्रचार केला त्याचा तो प्रायोगिक रीतीने आपल्या जीवनात अनुभवला. Now Jesus is arrested. अभी यीशु को गिरफ्तार कर लिया। आता येशूला अटक करण्यात आलं. When he was arrested, all the disciples came, ran away. गिरफ्तार करने के समय सारे चेले भाग गए। येशूला अटक केलं तेव्हा सर्व शिष्य पळून गेले. But again, one by one, they started coming. लेकिन एक एक करके वे दोबारा आने लगे। पण एक एक करून ते परत येऊ लागले. They were following Jesus. वे यीशु के पीछे हो लिए ते थे। येशूच्या मागे होत होते. Luke 22:54 says, they followed Jesus afar off. लेकिन लूका 22 के 54 वचन में कहा गया है, वो दूर से ही इसके पीछे हो लिए थे। लूक 22 अध्याय 54व्या वचनामध्ये लिहिलं आहे, लांबून ते येशूच्या मागे होत If होते. you don't pray much, we may follow Jesus, but afar off. यदि हम प्रार्थना नहीं करते तो शायद हम यीशु के पीछे तो हो लेंगे, लेकिन वो दूर से ही हम उसके पीछे हो लेंगे। जर आपण प्रार्थना करत नाही तर येशूचे अनुकरण करणार, पण ते खूप लांबूनच आपण त्याचे मागे We जाणार. may not be able to stand for divine healing. We may not be practicing all the deep doctrines. We may not live a very holy life. We will follow Jesus, but afar off. हम ईश्वरी चंगाई का पालन नहीं करेंगे, पवित्र जीवन तो नहीं बिताएंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा तो यीशु के पीछे हो लेने वाले होंगे। आपण जे आहे दैवी आरोग्याचा अनुभव करणार नाही, येशू आणि वचनानुसार जगणार नाही, तरी येशूच्या मागेच होत जाणार, पण आपण लांबून जाणार. But in Luke 23:46, we read about our Lord Jesus. लेकिन लूका का सुसमाचार 23 अध्याय का 46 वचन में यीशु के बारे में हम देखते हैं। पण लूक 23 अध्याय 46व्या वचनामध्ये येशू विषयी आपण पाहतो. Now even Father's face was hid from him. अभी पिता का चेहरा भी उससे छिप गया था। आता पित्यानेही आपलं तोंड त्याच्यापासून लपवलं. All these years, his only joy was he was always seeing the face of the Father. इतने सारे वर्षों में उसका केवल एक ही आनंद था कि वो हमेशा पिता के चेहरे को देखता था। इतके वर्ष त्याचा एकच आनंद होता आणि तो फक्त पित्याचं तोंडच पाहून आनंदित होत Now होता. that also gone because of the sin of the whole world. Even Father's face also was hid from him. सारे संसार के पाप के कारण वो पिता का चेहरा भी उससे छिपा लिया गया। संपूर्ण जगाचं पाप त्यांनी स्वतःवर घेतल्यामुळे आता पित्याचं तोंडही त्यांनी लपवलं. At that occasion also he said, Father, I commend my spirit in your hands. He As a- always preserved the close fellowship with the Father. ऐसे संदर्भ में भी वो पिता से कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ,
पिता के साथ एक निकट के संबंध को उसने हमेशा बनाए रखा। असल्या घटकेती तो म्हणतो, हे पित्या माझा आत्मा मी तुझ्या हाती सोपवतो. असल्या काळातही पित्याबरोबरचा संबंध त्यांनी If you सांभाळलं. are praying then things go favorable to us also, when things goes against us also, we'll be following the Lord sincerely. यदि हम प्रार्थना करने वाले लोग होंगे तो चाहे बातें हमारे अनुकूल में हो या हमारे प्रतिकूल क्यों ना हो, लेकिन हम फिर भी प्रभु के पीछे हो लेंगे। आपण प्रार्थना करणारे लोक असलो तर गोष्टी आपल्या अनुकूल असतील, प्रतिकूल असतील तरी आपण आपल्या येशूच्या मागेच राहणार. In Matthew 17, 22 and 23 we read, मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय का 22 और 23 वचन में हम पढ़ते हैं। मत्ती 17, 22 आणि 23व्या वचनात आपण पाहतो, Jesus knew the end. यीशु मसीह उस अंत के बारे में जानता था। येशूला शेवटाविषयी माहित होतं. He knew everything what will happen. वो जानता था कि क्या होने वाला है। कोणत्या गोष्टी होणार आहेत त्या त्याला In ठाऊक होत्या. John 16:7 he said, I will go and send the Holy Spirit. यूहन्ना 16 के 7 में वो कहता है, मैं जाकर पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा। योहान शुभवर्तमान 16 अध्याय 7व्या वचनामध्ये तो म्हणतो, मी जातो आणि तुमच्यासाठी एका कैवारीला पाठवतो. In John 18:4 read that he knew everything which will happen. यूहन्ना 18 के 4 में हम देखते हैं वो सब कुछ आने वाली बातों को जानता था। 8वा अध्याय 4व्या वचनामध्ये येणाऱ्या सर्व गोष्टी त्याला ठाऊक होत्या. Verse 4 we read that Jesus knowing everything. चौथे वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह सब बातों को जानता था। आणि 4व्या वचनामध्ये आपण पाहतो, येशू आपणावर येणाऱ्या सर्व गोष्टी जाणून होता. In Mark 14:27 to 30 also we read. मार्कुस का सुसमाचार 14 अध्याय के 27 से लेकर 30 वचन में भी हम देखते हैं। मार्क 14वा अध्याय 27 ते 30व्या वचनापर्यंत आपण पाहतो. Before he was killed, he was telling, I'll be killed, I'll be buried, but I'll resurrect once again. अपनी मृत्यु के पहले उसने कहा था कि मैं मार डाला जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, लेकिन मैं फिर दोबारा जी उठूंगा। मार्क 14व्या अध्यायामध्ये आपण पाहतो तो म्हणतो की मी खिळला जाणार, मी मरणार, पण परत मी तिसऱ्या दिवशी जिवंत होणार. But what about our wonderful Peter? लेकिन हमारे अद्भुत पतरस के बारे में क्या हुआ? पण आपला अद्भुत पेत्राविषयी काय? Read Matthew 26:58. मत्ती 26 का 58 पढ़िए। मत्ती Jesus knew the शुभवर्तमान end. यीशु तो अंत को जानता था। येशूला शेवट ठाऊक होता. और पतरस दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया. He was sitting with the people to know the end. वो अंत के बारे में जानने के लिए जाके लोगों के साथ बैठ गया। आणि शेवट काय आहे हे पाहण्यासाठी तो आज जाऊन बसला He लोकांबरोबर. did not know what will happen. वो नहीं जानता था कि क्या होने वाला त्याला है। ठाऊक नव्हतं काय होणार आहे. Jesus already told everything. I will die, I will be buried, I will be resurrected once again. यीशु ने तो पहले ही बोला था कि मैं मर जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, दोबारा मैं फिर जी उठूंगा। येशूने सर्व काही अगोदरच सांगितलं होतं, मला मारण्यात येईल, मला गाडण्यात पुरण्यात येईल, परत मी जिवंत होणं, या सर्व गोष्टी सांगितल्या But he होत्या. could not understand anything. लेकिन वो फिर भी कुछ भी बात समझ नहीं पाए। तरीही त्याला काही समजू आलं नाही. In Mark 14:29, मार्कुस 14 का 29 में मार्क 14:29 मध्ये what Peter is telling, पतरस क्या कहता है? पेत्र काय म्हणत होता? please read. पढ़िए। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा. All may be offended, I will not be offended. चाहे सब लोग ठोकर खाए लेकिन फिर भी मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। सर्वांनी सर्व अडखळले तरी मी अडखळणार नाही. Now read verse 31. अभी 31वां वचन पढ़िए। आता 31वां वचन पहा. पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार कभी न करूंगा. इसी प्रकार और सबने भी कहा. Such a bold person. इतना एक हिम्मत रखने वाला हा, व्यक्ति। किती धैर्यवान आहे. If all die also, if I have to die also, I will die with you. मुझे मरना भी पड़े तो मैं तेरे साथ मरूंगा। तो म्हणतो, जर मला मरावंही लागले तर मी तुझ्या All बरोबर may मरणार. run, I will not run. सब लोग भाग जाने से मैं नहीं भागूंगा। सर्वजण पळाले तरी मी पडणार नाही. Jesus said, Yes, today sir. before the cock crow twice, you will deny me thrice. यीशु ने कहा कि आज रात को मुर्ग बांग देने से पहले तो यीशु का इनकार करेगा। आणि येशूने म्हटलं की आता कोंबडा बांग देण्याच्या अगोदर तू 3 वेळेस मला After that नाकारशील. he was telling, if I have to die also, I will not deny. उसके बावजूद भी वो कहता है चाहे मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार नहीं तरी तो करूंगा। म्हणतो की मला मरावंही लागलं तरीही मी तुला नाकारणार नाही. But what about our Lord Jesus? लेकिन प्रभु यीशु के बारे में क्या है? पण आपल्या येशूविषयी काय? In Hebrews 10:7 it is written, he came to do the will of the Father. इब्रानियों 10 के 7 में हम देखते हैं वो पिता की इच्छा करने के लिए आया। इब्री 10:7 मध्ये आपण पाहतो तो पित्याची इच्छा करण्यासाठी आला. And in Matthew 26, in many other places also. लेकिन मत्ती 26 में और कई स्थानों में भी मत्ती 26वा अध्याय आणि अजून अनेक ठिकाणी आपण पाहतो. It is written, many times he did many things so that the word of God might be fulfilled. कई स्थानों में उसने ऐसे कई काम किए ताकि परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वो पूरा हो। अनेक ठिकाणी त्यांनी वेगवेगळे कामे केले या एणे करून पित्याची इच्छा पूर्ण व्हावी. He said, I can call the Father
उसने कहा कि मैं पिता को बुला सकता हूँ. तो म्हणतो मी आता पित्याला हाक मारू He can शकतो send me 12 legions of angels. That means 72,000 angels. और वो मुझ मेरे लिए जो है 12 लेगियोन की सेना को अर्थात 72,000 सैनिकों को भेज सकता है, स्वर्गदूतों को भेज सकता है. जर मी बघितलं तर 12 लेगोन सेना म्हणजे 72,000 सेनांना तो पाठवू शकतो. So that the scripture might be fulfilled. लेकिन फिर भी पवित्र शास्त्र का वचन पूरा होने के तरी लिए शास्त्रलेख पूर्ण झालं पाहिजे. We will make a simple calculation. हम एक थोड़ा सा हिसाब लगाएं तो थोडस हिशोब जर आपण केला One angel can kill 1,85,000 soldiers. यदि एक स्वर्गदूत 1,85,000 सैनिकों को मार डाल सकता है तो एक स्वर्गदूत 1,85,000 लोकांना मारून टाकू शकतो. They can kill more also. उससे अधिक भी वो मार सकते हैं. त्याच्यापेक्षा अधिकही ते मारू Calculate शकतात. 1,85,000 for one angel. यदि एक स्वर्गदूत के लिए 1,85,000 का हिसाब लगाए तो एका स्वर्गदूतासाठी 1,85,000 लोकांना मारून टाकलं They तर can kill 1,332 crores of people. तो 1,332 करोड़ लोगों को वो मार सकते हैं. 1,332 करोड लोकांना ते मारून टाकू That शकतात. means the whole population of the world can be wiped out. अर्थात संसार की सारी जनसंख्या नाश की जा सकती है. जगातले सर्व जनसंख्या ते नाश करून टाकतील. If Jesus said, God will do that. यदि यीशु कहेगा तो परमेश्वर ऐसा कर भी येशू देगा. असं म्हटलं तर पिता असं करणार सुद्धा. But he did not say so that the scripture might be fulfilled. लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा ताकि पवित्र शास्त्र की बात पूरी पण हो. त्याने असं काही केलं नाही कारण शास्त्रलेख पूर्ण झालं पाहिजे. He said, I am thirsty so that the scripture might be fulfilled. उसने ये भी कहा कि मैं प्यासा हूँ ताकि पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बात पूरी हो. तो म्हणतो मी तहानेला आहे येणे करून शास्त्रलेख पूर्ण झालं In पाहिजे. the last 24 hours of the life of Jesus, more than 20 prophecies were fulfilled in his life. और यीशु मसीह के जीवन के अंतिम 24 घंटों के अंदर हम देखते हैं 20 से अधिक भविष्यवाणियां उसके विषय में पूरी हुई. येशू ख्रिस्ताच्या शेवटल्या 24 तासामध्ये आपण पाहतो 20 पेक्षा अधिक संदेश पूर्ण झाले. But finally, in Mark 14 chapter, we read, परंतु अंत में हम मार्कुस का सुसमाचार 14 अध्याय में पढ़ते हैं. आणि शेवटी मार्क 14 अध्यायामध्ये आपण पाहतो Jesus wanted the disciples to share his burden. यीशु मसीह चाहता था कि चेले उसके साथ उसके बोझ को बांटे. येशूला वाटत होतं की आपले शिष्य त्याचे ओझ घ्यावे. In 1433, we read that he took James, Johnson, Peter, and wanted them to pray for him. हम 33वें वचन में देखते हैं पतरस याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले जाकर वो प्रार्थना करना चाहता था. 35व्या वचनामध्ये आपण पाहतो त्याने पेत्र याकोब आणि योहानाला त्याच्या बरोबर प्रार्थना करण्यासाठी नेला. They could not share his spiritual burden. वो उसके आत्मिक बोझ को बांट नहीं सके. ते त्याचे आध्यात्मिक ओझ घेऊ शकले नाही. When Jesus was carrying the cross and going, जब यीशु मसीह क्रूस को उठाकर जा रहा था जेव्हा येशू ख्रिस्त आपलं क्रूस स्वतःवर घेऊन जात होता none of the disciples were nearby him to share the burden. उसके बोझ को उठाने के लिए कोई भी चेले उसके पास में नहीं थे. त्याचं ओझ सहण्यासाठी कोण एकही शिष्य नव्हता. So Mark 15:21 we read that मार्कुस 15 का 21 में हम देखते हैं. आणि मार्क 15:21 मध्ये आपण पाहतो there's another person by name, please read. और एक व्यक्ति के बारे में हम देखते 15:21. हैं 15 का 21. Mark. मार्क 15:21 और सिकंदर और रूफस का पिता शमोन नामी कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला. उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले. He is not one among the disciples, वो चेलों में से एक नहीं था तो शिष्यांमधला एक नव्हता. but he was there to share the burden of Jesus. लेकिन वो वहाँ पर यीशु के बोझ को बांटने के लिए वहाँ तैयार था. पण तेथे तो येशूचं ओझ उचलण्यासाठी तो तिथं होता. But none of the disciples were there. लेकिन वहाँ पर उसका एक भी चेला नहीं था. पण त्याचे शिष्य कोणी नव्हते. How much our Lord Jesus would have been grieved. हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना अधिक दुखी हुआ होगा. हा आपला येशू ख्रिस्त किती अधिक दुखी झाला असेल. If we really examine our life, यदि हम सचमुच अपने जीवन को जांचे तो जर आपण खरोखर आपलं जीवन पारखून we पाहिलं can तर see many times we are also behaving like that. कितनी बार हम भी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं. आपण हे अनेक वेळेस असं केलेलं आहे. People may be in problem, troubles, tears, in difficulties, we will not bother. लोग समस्याओं में संकट में आंसुओं के साथ दिखाई देते होंगे लेकिन हम उनकी परवाह नहीं करते हैं. लोक संकटात असतील दुःखात असतील पण आपल्याला त्यांची काळजी नसते. Whether problem is there or not, God wants each and every one of us to pray always. समस्या हो ना हो लेकिन प्रभु चाहता है कि हम हमेशा प्रार्थना करने वाले होकर दिखाई दें. समस्या असो किंवा नाही पण येशूला वाटतं की आपण प्रार्थना करणारे असले पाहिजे. When I was in the training period in Adair, अड्यार में मेरे प्रशिक्षण केंद्र में रहने के समय आणि में अड्यार मध्ये जेव्हा मी प्रशिक्षण केंद्रात होतो 3 brothers used to pray every day in the night.
तीन भाई लोग प्रतिदिन रात को प्रार्थना किया करते थे। 3 भाऊ जे आहे रात्रभर प्रार्थना करत होते After prayer 10, we used to pray for 1 hour extra. और प्रार्थना श्रृंखला के पश्चात और 1 घंटा हम अलग प्रार्थना करते थे। प्रार्थनेच्या साखळीनंतर परत 1 तास आम्ही प्रार्थना करत होतो। God used to speak to us many things and He made us strong in the training period. परमेश्वर हमसे कई बातें कहा करता था और हमारे प्रशिक्षण केंद्र के दिनों में हमको उसने और भी बलवंत किया। आणि परमेश्वर अनेक गोष्टी आमच्याशी बोलत होता। त्या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये आम्हाला अजून त्यांनी बळकट केलं। God showed many visions and made us to understand the spiritual things. परमेश्वर ने हमें कई दर्शन दिखाए, कई आत्मिक बातों को समझने के लिए सहायता किया। परमेश्वरने आम्हाला अनेक दर्शन दाखवून आम्हाला आध्यात्मिक गोष्टी समजण्यासाठी सहाय्य केलं। One day we all went to do some physical work. एक दिन हम कुछ शारीरिक काम करने के लिए हम सब गए थे। एकदा आम्ही शारीरिक काम करण्यासाठी गेलो। 12 o'clock we came back. 12 बजे हम वापस लौटे। 12 वाजता परत आलो। We took nice food. हमने अच्छा खाना खाया। चांगलं जेवलो। We used to pray 1 to 2. हम 1 से 2 तक प्रार्थना करते 1 ते थे। 2 आम्ही प्रार्थना करत होतो। So I told today I am very tired. I will not come to pray. मैंने कहा आज मैं बहुत थक गया, आज मैं प्रार्थना करने नहीं आऊंगा। मी म्हटलो की आज मी खूप थकलो आहे, आज मी प्रार्थना करायला येणार नाही। Another brother also said, I feel very weak. I have got a small wound also, so I don't want to pray today. दूसरे भाई ने कहा मुझे भी बहुत कमजोरी लग रही है, शरीर में भी छोटा सा घाव हो गया, आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। दुसऱ्या भावानेही म्हटलं की मलाही खूप थकवा आलेला आहे, माझ्या पायामध्ये एक फोड आलेला आहे, मला दुखतंय, मी प्रार्थना करणार नाही। But third brother, he went and prayed as usual. तीसरे भाई ने जाकर हमेशा के जैसे प्रार्थना किया। पण तिसरा भाऊ नेहमी सारखं जाऊन प्रार्थना केला। He was a very hard worker. He was so tired than all of us. वो हमसे भी कहीं अधिक थका हुआ था, क्योंकि हमसे भी अधिक वो परिश्रमी व्यक्ति था। आमच्यापेक्षा अधिक कठीण परिश्रम करणारा व्यक्ती होता, तो आमच्यापेक्षा अधिक थकलेला होता। When he prayed for 5 minutes, जब उसने 5 मिनट तक प्रार्थना की, जेव्हा त्याने 5 मिनिटासाठी प्रार्थना केली, he saw a vision. उसने एक दर्शन देखा। त्याने एक दर्शन पाहिले। Somebody in white dress sitting and crying. कोई श्वेत वस्त्र में बैठा हुआ रो रहा था। एक पांढरे वस्त्र परिधान केलेला एक व्यक्ती रडत आहे Crying so much, groaning and crying. वो इतना अधिक विलाप कर रहा था, रो रहा था। आणि तो खूपच आक्रोश करून रडत होता। He went near him and lifted up his head. उसके पास में जाके उसके सिर को उठा के देखा, तो जवळ गेला आणि त्याचं डोकं वर करून पाहिला। It was Jesus. वो यीशु था। तो येशू होता। He was shocked. वो देखकर अचंभित हो गया। त्याला खूप आश्चर्य वाटले। He said, Jesus, why you are crying? पूछा, यीशु तुम क्यों रो रहे हो? तो म्हटला, येशू तू का रडत आहेस? Jesus told, I called many to serve me. यीशु ने कहा मैंने सेवा करने के लिए बहुत से लोगों को बुलाया। येशूने म्हटले मी खूप लोकांना, पुष्कळ लोकांना प्रार्थना I सेवा called- करण्यासाठी बोलावलं। I called some people for a special purpose also. मैंने कुछ लोगों को कुछ विशेष उद्देश्य के साथ भी बुलाया। आणि काही लोकांना खास उद्देशाने मी बोलावलं। But all of them, they are sleeping without praying. That's why I'm grieved. लेकिन सभी लोग प्रार्थना किए बिना सो रहे हैं, इस कारण से मैं दुखी हूँ। पण प्रार्थना न करता ते झोपले आहेत, हे पाहून मला दुःख वाटतंय। I want them to share my burden every day. मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन वे मेरे बोझ को बांटे। आणि मला वाटतंय की ते माझं सर्व ओझ प्रतिदिवस त्यांनी सहावं। But some days they pray, some days they don't pray. कुछ दिनों में तो वे प्रार्थना करते, कुछ दिन वे प्रार्थना नहीं काही करते। दिवस ते प्रार्थना करतात, काही दिवस प्रार्थना करत Some नाही। days they share my burden, sometimes they don't share my burden. कुछ दिन तो वे मेरे साथ बोझ को बांटते हैं और कुछ दिन वे नहीं करते। आणि काही दिवस ते माझं ओझ घेतात, काही दिवस ओझ घेत नाहीत। Some never pray also. कुछ लोग तो कभी भी प्रार्थना नहीं आणि करते। काही लोक कधीही प्रार्थना करत नाहीत। Then he came running. तब वो दौड़ कर आए, मग तो धावत आला। He woke both of us. हम दोनों को उसने जगाया। आम्हा दोघांना त्याने उठवलं। When we had, we were shocked. और जब हमने ये सुना तो हम अचंभित हो आणि गए। हे ऐकताच आम्हाला खूप आश्चर्य वाटले। Immediately we threw all the bedsheet and went to the ground and started praying. तुरंत हम अपनी चादर छोड़कर उठ बैठे और हम जाके मैदान में प्रार्थना करने आणि लगे। आमचं जे चादर आहे ते सोडून टाकलं, धावत जाऊन आम्ही प्रार्थना करू लागलो। 1:30 to 4 o'clock we prayed. We felt no tiredness in our body. 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक हमने प्रार्थना की, हमारे शरीर में कुछ भी थकान महसूस नहीं हुई। 3 ते 4 पर्यंत आम्ही प्रार्थना केलो, आम्हाला कुठलाही थकवा वाटला नाही। Dear children of God, if we pray like that every day and share the burden of our Lord Jesus, He'll be very, very happy. He'll be blessing us and He will make us a blessing for others ये also. परमेश्वर के लोगों, यदि हम इस प्रकार से प्रतिदिन हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के बोझ को बांटेंगे, तो वो बहुत आनंदित होगा, वो हमें आशीष करेगा और हमें दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनाएगा। प्रिय देवाच्या लेकरांनो, जर आपण असा निर्णय घेऊन प्रार्थना करत राहिलो तर येशूचं ओझ तो आपल्याला देणार, आपण त्याचं ओझेचे भागीकारी होणार आणि आशीर्वाद करणार। Special calling was given to Peter, James and John. पतरस, याकूब, यूहन्ना को ये विशेष बुलाहट दी गई थी। पेत्र, याकोब आणि योहानाला एक विशेष पाचारण दिलं होतं। They are not just to pray for their needs. उन्हें केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना नहीं करना था। त्यांना फक्त त्यांच्या गरजेसाठी प्रार्थना करायची नव्हती। Jesus told, can you not pray at least 1 hour with me? With Jesus they have to pray. यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी प्रार्थना नहीं कर पाए? यीशु के साथ वे लोग 1 घंटा प्रार्थना करना येशू चाहिए। बरोबर त्यांनी 1 तास प्रार्थना करायची होती।
Jesus wants we all should bear his burden every day in prayer. यीशु चाहता है कि प्रतिदिन हम प्रार्थना में उसके बोझ को बांटे. येशूला वाटतंय की आपण त्याचं ओझ प्रार्थनेमध्ये घेतलं As a पाहिजे. whole church, if we pray like that, यदि पूरी कली से मिलकर हम ऐसा प्रार्थना करेंगे तो संपूर्ण मंडळी जर अशी प्रार्थना केली तर wonders and miracles will take place every day. सब प्रतिदिन चिन्ह और चमत्कार की बातें होंगी. प्रत्येक दिवस अद्भुत आणि आश्चर्यकर्मे होत राहतील. Soon India will be having majority of the people Christians. और बहुत जल्दी भारत देश में अधिकतर लोग मसीह हो जाएंगे. आणि भारत देशामध्ये पुष्कळशे लोक ख्रिस्ती होतील. How many of us desire such an हम में experience? से कितने लोग ऐसे एक अनुभव को चाहते हैं? आपल्यामध्ये किती लोकांना असा अनुभव हवा आहे? Shall we all close our eyes? हम सब अपनी आंखों को बंद तर आपण करेंगे. आपले डोळे बंद करूया. Remember, whenever we do not pray, we make Jesus to cry. याद रखिए, जब कभी हम प्रार्थना नहीं करते हम यीशु को रुलाते हैं. हे एक गोष्ट आठवण ठेवा, जेव्हा केव्हा आपण प्रार्थना करत नाही आपण येशूला रडवतो. Make a decision today, Lord, hereafter I will never make you to cry by not praying. आज हम फैसला लेंगे कि हे प्रभु, अभी मैं तुझे प्रार्थना किए बिना मैं तुझे कभी नहीं रुलाऊंगा. आता आपण एक निश्चय घेऊया आणि म्हणूया, हे प्रभू, प्रार्थना न करता तुला कधीही मी रडवणार नाही. Shall we pray for 2 minutes? 2 मिनट के लिए आइए हम प्रार्थना आपण करेंगे. 2 मिनिटांसाठी प्रार्थना करूया. Sincerely let us call upon Jesus. सच्चे हृदय से हम यीशु को पुकारेंगे. प्रामाणिकपणे आपण देवाला हाक Lord, you मारूया. have saved me, you have blessed me, you have given me joy and peace. हे परमेश्वर, तूने मेरा उद्धार किया, मुझे आशीष किया, मुझे शांति और आनंद दिया. हे प्रभू, तुम्ही माझं तारण केलं आहे, तुम्ही मला उद्धार दिला आहे. All मला Maharashtra आशीर्वाद. should enjoy that. और सारा महाराष्ट्र से अनुभव करना चाहिए. संपूर्ण महाराष्ट्राला ह्याचा Whole अनुभव Ambernath झाला should पाहिजे. enjoy that. पूरा अंबरनाथ उसमें आनंदित होना चाहिए. संपूर्ण अंबरनाथ त्यामध्ये आनंदित झालं Lord, पाहिजे. I dedicate myself for that. हे परमेश्वर, उसके लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हे हूँ. प्रभू, त्यासाठी मी समर्पण करत Shall we आहे. all cry and pray and ask grace from God? हम सब रोते हुए परमेश्वर के पुकार के आप प्रभु से अनुग्रह को आपण मांगेंगे. सर्व रडूया, प्रार्थना करूया, परमेश्वरापुढे ती कृपा मागूया. Then we shall be blessed. तब हम आशीष पाएंगे. तेव्हा आपण आशीर्वाद We प्राप्त shall be करणार. blessing for others. हम दूसरों के लिए आशीष का कारण आपण होंगे. इतरांसाठी आशीर्वादित When होणार. Jesus comes in the mid-air, we all shall be caught up with the coming of the और Lord. जब यीशु मध्य आकाश में आएगा हम सब उसके आगमन में उठा लिए जाएंगे. आपला येशू जेव्हा मध्य आकाशी येईल, आपण सर्वजण त्याबरोबर After उचलले that, there जाणार. will be no tears, no sorrow, no problem. We shall be ruling with our God forever and ever. उसके बाद कोई आंसू नहीं, कोई दुख नहीं, कोई समस्या होगा. हम यीशु के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे. त्यानंतर अश्रू नसणार, दुःख नसणार, वेदना नसणार. सतत येशू बरोबर राहून आपण सदैव आनंदित होणार. Shall we all pray? हम सब प्रार्थना आपण करेंगे. प्रार्थना करूया. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sharabanga, Tudabanga, Tuda, Shidabale, Kibaraba, Shidabanga, Tudabanga, Tuda, Hadavata Kirvinal, Hurricane Methave, Jabavinal, Kandinavinal, Pundapatinal, Hurricane Methave, O Lord, Buddha Bharat, Sumakra Janangala, Khana Pudadeshi Methave, Della Javakure, Manikan Maya, Javakure, Manikan Methave, Javakure, Manikan Methave, Mela, Karatil Pinbatangal Keralavan, Kirvodkan Methave, Della Madri Pinbateralavan, Kirvodkan Methave, Alavata Kirvinal, Hurricane Methave, Kade, Shaba, Kala, Kapa, Kade, Kabe, Shalabaka, Hidabakatina, Ribalagata, Hidabale, Kibaraba, Hidabala, Ribalabe, Rabalagata, Ribalagate, Ribalagata, Kidabala, Rabalagata, Rabakatina Bakatine, Hidabale, Kibalaba, Ribalagatina Bakatune, Hide, Kabe, Hidabakatina Bakatina, Alavata Kirvina, Hurricane Methave, Mudisavi, Jabavinal, Pundapatina, Kandiri.